behalf of our chairperson, Ms. Ritu Shah, I, Prachi Trivedi Shah, Honorary Secretary, Flow Hyderabad Chapter, would like to welcome you all to Empowering India Through Education with none other than Super 30 Padma Shri awardee, Mr. Anand Kumar. Could I kindly request everyone to please put your phones on silent and rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। It is an honor to request Flow Chairperson Ms. Ritu Shah, our guest today, Mr. Anand Kumar, along with our Y-Flow Chairperson Ms. Aarti Shah, to come forward for lighting of the lamp. It is an honor to request our Flow past chairpersons, Ms. Manjula Reddy, Ms. Rekha Reddy, Ms. Rekha Lahoti, Ms. Usha Rani Manne, and Ms. Shubhra Maheshwari to join our speaker for the photographs. Followed by the existing participants to our chairperson. Of the Business League to kindly host the second Business League of the year. Thank you, Prachi, and a very good afternoon to each and everyone present.
I stand before you today with great pleasure as we gather here for the second session of the Flow Hyderabad Business League for this year. Flow is a remarkable organization dedicating to fostering the spirit of women entrepreneurship and growth. And I say with pride that Hyderabad chapter is ahead in recognizing the need of business networking among its members. Networking is not just about expanding our professional connections. It is about building meaningful relationships that transcend business transactions. It is also about connecting people with ideas and people with opportunities. It is a journey towards empowerment, collaboration, and collective success. In the coming months, our organization will host a series of business networking sessions. We will have members from various industries speak about their businesses and their expertise on the Flow platform as part of the main event. These gatherings will serve as a catalyst for knowledge sharing, personal growth, and most importantly, meaningful connections. Today, we have 4 presentations to witness. First is a team of 3 presenters, Avantika Madi, Dhritika Ramesh, Tanishka Gaggar for El Evento, followed by Dr. Shweta Agrawal for Southern Gem Hospital. Then Mridula Reddy for Instabytes. And lastly, Shelly Malpani and Ruchika Agrawal for the Design Street. Let us all encourage them by giving our undivided attention and a round of applause. Little moments, big memories. Life is too short to not celebrate. Good afternoon, everyone. I'm Tanishka Gaggar, co-founder of Elevento Events. I have 2 partners, Dhritika Ramesh and Avantika Chidura. We started Elevento 3 years ago. It is an event management company based out of Hyderabad, and we specialize in event decor ranging from celebratory birthday dinners to the big fat Indian weddings. What separates us from others is the very fact that there is zero monotony to our work. Every day is a new day at Elevento, and we believe every person is unique, and we try to tailor every event according to their needs. Here is a little insight into our journey over the past 3 years. Today, we celebrate 200 plus events, 300 plus happy clients, and a social media family of 2,000 plus members. We stand here today to collaborate and connect with our fellow entrepreneurs. We aspire to develop mutually beneficial relationships with individuals and businesses. Our target is to diversify and expand our customer and supplier base through this organization. Let's get a little glimpse into our work. We do it all, from first birthdays or anniversaries to big golden 50th. Being in a country which is so culturally rich, we cater to all kinds of celebrations like Roka, Pelikorku, Mehendi cocktail, and the big day. If you want to go the extra mile for your loved ones, we've got you covered. Thank you so much for your time. Looking forward to connecting with you. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Shweta Agarwal from Southern Gem Hospital. We work out of 2 branches, one in Bashirbagh and Banjara Hills. We are basically a women and child care facility, and we have wide range of services in this area, right from helping you to get pregnant and taking you through your pregnancy. We are an award-winning fertility center, and I have been working in this area for the past 18 years with the 7 years of international experience in Australia. Regarding fertility services, you name it and we have it. IVF, surrogacy, or any other fertility services you need. We hold your hand throughout your pregnancy with personalized care for your deliveries. And also, we have an ICU, the neonatal ICU, with international doctors with wealth of experience in handling your preterm babies. We manage babies from 650 grams onwards, which are healthy and happy. And we have recently introduced cosmetic gynecology, which is a very new area of, we are the pioneers. We are the first center in Hyderabad with this facility. With using simple techniques, simple, safe, and effective laser facilities, we can do surgeries like for vaginal dryness, vaginal tightening, vaginal lightening, and leaking of urine. They are very simple, safe, and effective. So we've all covered you in all the areas. So we are like
offering individualized care, personalized care with affordable prices, with international experience, and we are every time adding new and advanced treatment, whatever comes through. So we've got happy babies, healthy families, and bringing you the joy of parenthood from Southern Gem Hospital, Dr. Sweta. Hello everyone, I'm Mridula, co-founder of InstaBites. Today I'm thrilled to present our revolutionary product which combines the goodness of freeze-dried technology with the convenience of instant ready-to-eat meals. At InstaBites, we are dedicated to bringing our product to your table while adhering to the UN Sustainable Goals, from sourcing fresh produce directly from the farmers to employing eco-friendly packaging. We strive to minimize our carbon footprint throughout the entire process. Preparing InstaBite meals is very easy. You just have to add hot water or add cold water and microwave it for a minute. And like magic, your homemade meat with the exact taste of your homemade meals is ready. It eliminates the need for extensive cooking, cleaning, making it an ideal choice for busy individuals, students, and the elderly seeking wholesome, delicious meals. Even a lazy day where you don't want to cook, being an expert cook, this can be a very nutritious, healthy meal without any preservatives. Freeze drying has many advantages. It uses very low temperatures and pressures, thereby preserving the nutrition and the taste, flavor, and texture. And the products have zero moisture, thereby limiting microbial activity, and we do not use any preservatives because of zero moisture in the food. It is light in weight, easy to carry while traveling or sending food for kids studying overseas. InstaBites offers a wide range of deliciously nutritious meal options like biryanis, curries, pastas, sandwich spreads, etc. Each meal is carefully curated with traditional healthy recipes and portioned to promote a healthy lifestyle, and is totally without any preservatives. We take pride in using pure cow ghee and salt, use pink Himalayan salt, ensuring that only the finest ingredients are incorporated into our recipes. I would like to end it with a note that God created mothers to be there wherever He is not. And we have created a product to be there wherever mother's food is not. Thank you. Good afternoon. So we would like to start with a question. In today's day and age, with everything available on Pinterest, why do we need to hire an interior designer? We have all the resources, but do we have the time? And making a house is extremely time consuming and with a million decisions to be made. And in today's fast-paced world, with fast changing trends, interior designing, all the trends are changing quickly too. While we might like 100 things, but do we know how to put all the 100 things together? Some things that are functional might not be pretty. Things that are pretty might not be functional. Does a Botticino marble go with a green wall? Is micro-topping really the right choice for your bathrooms? Veneers, laminates, PVC sheets, who knows? It's like wearing a Versace top with a Gucci belt and your shoes all put together. Ouch. This is where we come in. Our expertise is to bring beauty to form and to simplify it for you. Hi, I'm Ruchika. And I'm Shelly. We are the co-founders of the Design Street, an interior designing firm based out of Hyderabad. The diversity of our skills can be seen from the work that we do, which ranges right from residential to commercial and boutiques. So why would you pick us? Why would you hire us? We invest ourselves in every project that we take. We give our passion, our heart, everything to our project. And we want each client and partner experience to be the talk of a lifetime. We stand proud today at the fact that we have been featured on multiple interior designing publications, right from Good Homes, Home Publication, India Design World, Architect's Diary, and to top it all, Architectural Digest. To see more of our work, please do log in and check out our Instagram profile. And we would love to
We're looking forward to collaborating and connecting with all of you, and we would like to take this opportunity to thank Vicky Flo for helping us showcase our work here. Thank you. As we come to the close of today's session, I'm filled with a sense of profound inspiration. These presentations have enlightened us about the diverse range of industries presented within our organization. We have witnessed to the remarkable journey of a woman who refuses to accept age as a limitation. We have witnessed the power of partnership and a story of entrepreneurial spirit from a professional. In closing, I invite all members to make the most of the opportunity presented to you by Flow Business League platform. Reach out to your fellow members, explore opportunities for collaborations, and continue to seek and support one another on the entrepreneurial journeys. Remember that our network is our greatest asset, and by nurturing it, we can unlock limitless possibilities. For any further queries to become part of this elite group of Flow Business Network, please reach out to me post the event or any of my team members, and I'll be glad to assist. Thank you. Thank you, Shruti. Jiddu Krishnamurti had said, "There is no end to education. It is not that you read a book, pass an exam, and finish education. The whole life, from the moment you're born to the moment you die, is a process of learning." Education helps an individual think for themselves, giving way for developing new ideas, thoughts, and actions. It helps them to have an opinion and decide for themselves what is right and wrong. And most importantly, it empowers them to stand up for their rights. So how is it that something which is so crucial is a privilege? How is it that something that defines your growth becomes a privilege? Yes, education in today's world has and is a privilege. Something that is a basic right is not easily accessible to people based on finance, gender, and circumstances. The battle for education equality is a central element of women's rights and empowerment globally. We at Flow Hyderabad chapter understand the importance of a wholesome approach to sustain her ability. Our vision for the year is the endeavor in that direction to sustain her education, health, goal, and culture so that women may continue to grow and contribute to society in all spectrums of economic, social, and environmental development. Could I have the vision video, please? The pandemic has been a challenging experience for everyone, but no one can deny that women have been the most impacted. The pandemic has put to test a woman's ability to sustain herself and strike a balance between her physical and mental health, economic growth, environmental protection, and societal well-being. After experiencing the uncertainty of the future, we have learned valuable lessons of hope, survival, and sustainability. Women now have to rise above all adversities and face the challenges to sustain not just their own existence, but the existence of humanity as a whole. The first challenge we saw was to address women's health. Almost 50% of women aged between 15 to 24 years are still using cloth during their menstruation, and more than 30% of women, which is twice that of men, are suffering from different mental disorders. We want to focus on menstrual hygiene, accessibility of sanitary napkins while advocating women's mental health and wellness, thus sustaining her health. The second challenge we want to address is the lack of equal opportunity for women to achieve their goals. Women have traditionally prioritized their families and responsibilities over their aspirations. We want to provide a platform for women to set their goals and design a well-curated path to achieve them through empowerment, business networking, and marketplace, thus sustaining her goals. Women's education is the third challenge we want to address. In India, the literacy rate is a mere 62.3 in women compared to 80% in men. To ensure that knowledge and education for women reaches far and wide, we must equip them with the necessary tools and skills required to create a better world for tomorrow. To achieve this, we aim to work towards digital literacy, financial literacy, skilling, and upskilling, thus sustaining her education.
The fourth challenge we want to address is women's culture. A woman is a harbinger of culture, not just for her family but for society. It is through her that values are passed on through generations. We therefore want to work towards preserving and nurturing her culture, which is her pride, through a special book, Lost in Time, Revive the Glory of Telangana, through Style Tattva, the sustainable fashion and lifestyle exhibition, through retreat, networking, and cultural exchange in different states. The beautiful handloom from Telangana, Kelia Rumal. Thus, sustaining her culture. Women are like resilient seedlings breaking through the soil, growing and advancing. We give these resilient women the four pillars of our vision, which are the pillars of the 17 UN Sustainable Development Goals. As we come together, we present to you our vision statement: sustain her ability, sustain her social ability, sustain her economic ability, sustain her environmental ability, sustaining her ability. Watch as the vibrant lady in green stands as a metaphor for a strong woman who knows she has strength enough for the journey. A woman of strength who knows it is in the journey where she will become strong. Let us show you the vision plan where the entire year is aligned perfectly with the four pillars of sustainability. I, Nitu Shah, Flow Hyderabad Chairperson 2023-24, feel the strong need to answer calls for moving from words to action and hence the theme for the year. Sustaining your ability to excel in all aspects of life is what 2023-24 is all about. Believe in being strong, believe in being happy, believe in today, believe in tomorrow, believe in a miracle, believe in yourself, for you are what you want to be. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Our session today, Empowering India Through Education, takes us on an inspirational journey of none other than Padma Shri awardee Mr. Anand Kumar. A teacher, a mathematician, an educationist, and a guide who equipped his students with the knowledge that would change their destiny. I now call upon Ms. Nilima Arya, EC Head of Education Team, to kindly introduce our speaker, Mr. Anand Kumar. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, Prachi. Anand Kumar is a noted mathematics teacher who was born on 1st January 1973 in Patna. Behind the serene mathematics teacher is a journey that's inspiring, but more than being a teacher, he's also a man behind a silent social transition that he is ushering in through his revolutionary education initiative, Super 30. Fascinated by mathematics since early childhood, he founded a mathematics club, Ramanujam School of Mathematics, while he was still in graduation. He published many articles in the renowned magazines and journals. In the year 1994, Anand got an opportunity to pursue higher education in Cambridge University, but his poor financial health came in the way. Having witnessed extreme financial hardship since childhood, he felt the pangs of poverty so much that he decided to do something for the poor students, who invariably fade away without getting right opportunities. And it became the reason to start the program Super 30. He was named in Time magazine's list of Best of Asia 2010. His contribution to the field of literature and education was recognized by Government of India, which conferred Padma Shri on him. Thank you so much, Mr. Anand, for joining us today. Thank you, Nilima. It gives me immense pleasure that I now invite our chairperson, Ms. Ritu Shah, and our guest, Mr. Anand Kumar, on the dais. Could I kindly welcome our chairperson, Ms. Ritu Shah, to felicitate our guest, Mr. Anand Kumar.
respected esteemed guests, members of FLOW, our future of the nation, our children. A warm welcome to this auspicious gathering as we embark on a journey of empowerment, progress, and inspiration. In the words of Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is through education that we can dismantle prejudices, bridge divides, and create a society where everyone has equal opportunities to thrive. Investing in education is an investment in the future. It empowers individuals with the skills, knowledge, critical thinking abilities necessary to navigate the complexities of the modern world. Education empowers women to break barriers, shatter glass ceilings, and make their mark in every sphere of life. Today, we are fortunate to have with us Padma Shri awardee and Super 30 founder, a great renowned mathematician and academician, Mr. Anand Kumar, amidst us. Education is not merely about pressurizing children to excel academically. It is a holistic process that encompasses the overall development of an individual. Mr. Anand Kumar firmly believes in this philosophy and advocates for an educational system that fosters creativity, critical thinking, and emotional well being. Today, as we gather here, let us reaffirm our commitment to promoting access to quality education, especially for women and girls. Together, we can break down barriers, create inclusive learning environments, and ignite a passion for lifelong learning. Before we begin into this enlightening session, I would like to update you all on the happenings of Flow Hyderabad over the past few weeks. As you all know, Flow has just turned 40 and we Pan India are celebrating this remarkable milestone. Flow National is organizing Flow Fest, Shades of the Soul, on 26th and 27th of October in Delhi. The two-day art festival will be a platform for artists for performing and visual arts and culture to showcase their talents and an inspiring and memorable journey for all of us. We encourage members who wish to participate to please fill the Google form shared by the national team on or before 15th of July. It will be a magnificent event and the spirit of one flow coming together. The recent Flow Empowerment Meet at T Hub with the esteemed guest delegates from the Maldivian government was highly productive. They have expressed their interest in collaboration and seeking mentorships. Their profound admiration for Flow's work was very gratifying. A branding workshop by Mrs. Radhika Ghai, co-founder Shop Clues and Kind Life, was very informative and was attended by 6 Flow Empower Her community. Sustain Her Health Initiative organized a menstrual health camp on June 19th at Petlaburj Maternity Hospital. Ms. Shweta Mohanty, IAS, Commissioner Health and Family Welfare, Government of Telangana, graced the occasion as our chief guest. Dr. Malti, Superintendent of the hospital, addressed over 300 expectant mothers in the area, stressing on the importance of menstrual hygiene and sanitation. Flow Hyderabad donated 10 vending machines, 2 incinerators, 3,000 pads, and 85 mom and baby gift bundles to the hospital. Our initiative is going strong as we are able to impact more and more women with the generous help from you all. We urge you to keep this momentum high and come forward to be a part of the change. Every year on 21st of June, we celebrate International Yoga Day with the motive of spreading awareness about the Vedic practice, yoga, and meditation. This year, Flow Hyderabad did sessions at NBT Nagar Girls Government High School, and our very own yoga expert, Bela Modi, took the session for the girls, and we also had asked our members to share their experiences with yoga through pictures in their favorable pose. We compiled these images and circulated to all members with the hope that more members may be inspired to take up yoga for their overall well-being. Our Flow family is further flourishing and growing even bigger. We are happy to announce that we have inducted over 156 new members in 4 rounds of interviews. We look forward for more enthusiastic and qualified women to join our Flow family. Style Tattva. We are less than a month away from our Bahubali exhibition Style Tattva. It is a Herculean undertaking which can be achieved only with a strong and supportive team.
We have the last few stalls left to be sold, and we now need your help more than ever. We need each of you to come forward and help us volunteer on the days of the exhibition. Please contact Style Tattva conveners, co-conveners Radhika Bansal and Ritu Agarwal for more information. Flow Marketplace is an incredible opportunity for any members seeking to improve their brand visibility and generate viable business leads. Please contact Marketplace Head Radhika Agarwal to make the most of this incredible platform. As you have seen today, Business League is also a great platform for the Flow members to showcase their businesses. Congratulations to all the leaguers who have showcased the businesses today. Hope you experience great conversions after this. Under Sustain Her Education, we held a financial and digital literacy workshop on how to create UPI and Excel spreadsheets for grassroots women by CA Maunika, and health and fitness education and a health engaging session by Zainab Ali for grassroots women at Puttapaka village. Around 80 women attended the session, and we and the women at Puttapaka are looking forward for more such sessions. Without further ado, let us embark on this incredible journey today with the powerful sentiment by Malala Yousafzai. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Let us remember these words as we explore new horizons of knowledge and strive towards a future where education knows no boundaries. Thank you so much. It is a privilege to invite Mr. Anand Kumar to address the gathering and our chairperson, Ms. Ritu Shah, to take the session forward. विक्की फ्लो के प्रेसिडेंट रितु शाह जी, तमाम साथीगण और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ, आप लोग अभी तक शुरू से लेके अभी तक इंग्लिश में ही बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे। थोड़ा हिंदी का भी हम मजा आप लोगों को दे देते हैं। दरअसल में बातचीत हो रही थी रितु जी से, और रितु जी का तो हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आज नहीं, 1-2 महीने नहीं, करीब 1 साल पहले या उससे भी पहले 2 साल कह लीजिए पहले, इन्होंने कहा था कि कभी न कभी हम फिक्की फ्लो का प्रेसिडेंट जरूर बनेंगे, और बनेंगे तो आपको बुलाएंगे। तो सोचिए कि कितनी पुरानी बात है, इन्होंने कितनी मेहनत की और कितने बड़े सपने देखे कि भाई मुझे आना है। हम आना मेरे लिए बड़ा नहीं था, लेकिन एक सपना सच हो जाना कि सच में प्रेसिडेंट बन जाना, सच में मुझे बुला लेना, और आज सामने आप लोग बैठे हुए हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम लोग सोचे थे, रितु जी कल बात की हमसे, बोली कि क्या क्या बोलिएगा, बच्चों की कहानी बताइएगा। तो मैंने सोचा, एक प्लान किया। फिर इन्होंने बोला कि कुछ लोग कम समझते हैं लेकिन कम हिंदी समझते हैं, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दीजिएगा। तो हमने सोचा कि एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ आने पर आप लोगों का उत्साह देखकर, जिस तरह से आप आए हुए हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, देखकर अगर हम वो लेके आते स्क्रिप्ट तो सादा मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कोई चीज़ स्क्रिप्टेड रखिएगा तो आप बंध जाइएगा, उसका एक बाउंडेशन हो जाता है। इसलिए खुल के बातचीत हो तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम एक बात यहाँ भी आप लोगों को देखकर, या कुछ लेडीज़ आई अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में बताई, बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को इतना एक्टिव होके बड़ा अच्छा लगा। तो एक बात हमारे ध्यान में आई कि बिहार जैसे छोटे जगह पर जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत ग्रोथ हुआ है, पूरे देश में हुआ है, लेकिन हम बिहार की बात बता रहे हैं। बिहार बदनाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूरे देश की हालात है, ये इवन बिहार की भी, कि पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो बहुत कम लोगों को नसीब होता था कि एसी डब्बे में सफ़र कर पाए। फ्लाइट में चलना बहुत दूर की बात थी। आज अभी हम आ रहे हैं, हैदराबाद से 2-3 फ्लाइट पटना के लिए डायरेक्ट हो गई है। ये बदलाव आया है, बदलाव आया है हमारे देश में कि पहले एयर कंडीशन बहुत कम लोगों के घर में होता था, अब हर लोगों के घर में हर सुविधाएं
पहले जो अमीर लोग थे उनके घरों के चौखट की गुलाम होती थी शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही एक क्लास के लोगों तक था। अब रिक्शा ठेला वाला भी सुपर 30 या वैसे प्रोग्राम के माध्यम से पढ़ रहा है, वो अपनी जिंदगियां बदल रहा है। आप लोगों में से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सुपर 30 फिल्म आप लोगों में से कौन कौन लोगों ने देखी है? तो सब लोगों ने देखी है। उस कहानी पर हम उतना नहीं जाके हम दूसरी चीज बताएंगे। तो बदलाव देश में आया है, बताइए ये बदलाव आजादी के बाद क्यों आया? आप सोचिए, आपसे एक सवाल पूछ रहे क्यों आया? क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स के लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनका प्रयास है? ब्यूरोक्रेट्स का प्रयास है? नहीं, ये बदलाव इसलिए आया कि हमारे देश में महिलाओं को कुछ बड़ा करने का मौका मिला और वो अपनी ताकत को दिखा पाए। उसी का नतीजा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले या आज़ादी के लड़ाई के टाइम में एक साथ महिलाएं नहीं बैठ सकती थी, और सारा खेल जो सफलता का है हमारे देश में, उसमें महिलाओं का हाथ है। अभी देखिए, बिहार की लड़की है, घर में बैठ के पढ़ के यूपीएससी में 4था रैंक लाई, टॉप कर जाती है बार बार। कितनी महिलाओं में ताकत है। इस बात का इसलिए नहीं कि महिला के कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं तो हम बोल रहे हैं, हमारे मन में भी पुरुषवादी जो सिस्टम चल रहा है वो था, धीरे धीरे सीखा। शादी हुई, हमारी वाइफ आईआईटी से पढ़ के बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शादी हुई आई, तो हमने कहा कि भाई आज पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को थक गए हैं, एक गिलास पानी लाइए तो, और थोड़ा चाय बनाइए। तब बोली कि भाई चाय बनाइए, पानी लाइए, हम भी आज काम किए, आप चाय बनाइए। बड़ा अजीब लगा, जो सच बता रहे, आज से 10 साल 12 साल पहले की ये सब बात है, पुरानी बात है। अजीब लगा कि अरे भाई, हमारी दादी जी कितना प्यार से खाना खिलाती थी, माता जी खाना खिलाती थी, अरे कैसी शादी कर ली भाई कि चाय देने में पूछ रही है भाई। तब हम थोड़ा सा अजीब लगा, हमने पूछा कि अच्छा भाई आप क्यों ऐसा बोल रही बताइए? तो बोले कि अरे जब आप एक पुरुष है तो हम महिला है, हम चाय बना सकते हैं, खाना भी आपके लिए बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकती? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप टीचर हैं तो। अब आज के तारीख में हम तो बोले भाई हम तो चाय भी बनाना नहीं जानते। सच्चाई है, आज के तारीख में खाना बनाना भी हम सीख गए। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये कोई जोक या मजाक नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। हम लोगों जैसे लोग भी शुरुआती दौर में अपने घर की परंपरा को देखकर, सिस्टम को देखकर समझते थे कि महिलाएं जो है एक सीमित काम के लिए है, उनसे हम लोग उम्मीद नहीं आगे कुछ कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं का देखिए कंट्रीब्यूशन, इंडिगो में कोई भी एयर होस्टेज है तो लड़की है, एयर अटेंडेंट कोई लड़का नहीं होता। अभी नंबर 1 पर आ गया है इंडिगो, आपको ये खबर पढ़े होंगे सिर्फ। और उनके जो सीईओ है, उनके जो मालिक है, उनका यही बोलना है कि सिर्फ इसलिए कि मेरे मैनेजमेंट में सारी महिलाएं हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी सुपर 30 का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। हम अपना जस्ट एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, कोई सिस्टम से बातचीत नहीं कर रहे, कोई जैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कोई भाषण देते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो मन में आते जा रहा है बोल रहे हैं आपको। तो हम सुपर 30 का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको चाह रहे कि ऑनलाइन के जरिए बच्चों तक जाए। तो हम प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आए हमारे साथ जुड़े और काम बड़ा हो, काम करने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में, कुछ में भी, मैनेजमेंट में, तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि बिहार जैसे जगहों पर ज़्यादा लोग फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया, कुछ लेके भाग गया, पासवर्ड चेंज कर दिया, कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिला बहुत कम करती है। ऐसा काम आज तक हमको कोई नहीं मिला जो कि कोई धोखाधड़ी कर दी। इसलिए आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है। फर्क सिर्फ इतना था पहले और आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में लोगों को ये यकीन नहीं होता था। हजारों, ये बहुत सीरियसली बोल रहे हैं आपको, आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। हजारों साल से आप लोगों को दबाया गया है, आपको मजबूर किया गया, आपको इस माइंड में डाला गया। अभी भी आप लोग काम कर रही होंगी, बड़ा बड़ा बिजनेस संभाल, फिर भी आपके मन में ये डाला गया होगा कि नहीं, महिला के का एक लिमिट है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती है, लेकिन काम कर सकती है। कितना बड़ा आज आप लोग इतना बैठे हुए, इसका एक उदाहरण है। और देश इसीलिए बड़ा है। लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार है।
आज खबर आप पढ़ते हो कि पहली महिला किरण बेदी IPS बन गई। सब लोग प्राउड फील करते हैं, सब लोग प्राउड फील करते हैं, पायलट भी बन जाती है आजकल लेडीज। ऐसे ऐसे काम कर रही है जो पहले लेडीज नहीं करती थी, आज कर रही है। लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार है कि जब खबर आए, आपका काम को इतना ग्लैमराइज किया जाए कि खबर आए कि आज सबसे अच्छा स्वेटर बुनने वाला एक पुरुष है, सबसे अच्छा खाना बनाने वाला तो पुरुष आ गया है, टेलीविजन पर देख रहे हैं जहां तहां। लेकिन जो जो महिला काम कर सकती थी, सबसे अच्छा बच्चे को पालने का प्राइज मिला है एक पुरुष को। तो आपके काम का इम्पोर्टेंस उस समय पहचान बढ़ेगी जब उसको पुरुष अडॉप्ट करके गर्व करेगा। आज शर्म करता है, आज जाइएगा मिडिल क्लास फैमिली में तो कोई स्वेटर बुनने लगे पुरुष, तो सब उसका मजाक, महिला ही मजाक उड़ाएगी। नहीं, आपको प्राउड फील करना चाहिए कि नहीं ये ऐसा काम कर रहा है। घरेलू काम कोई पुरुष करता है तो उसको इनकरेज करिए, गर्व करिए कि नहीं भाई ये झाड़ू भी लगा दिया, आज नहीं कोई आया मेड तो झाड़ू लगा दिया। तो इस तरह से समाज धीरे धीरे बदल रहा है। आपको बोल्ड होने की जरूरत है, आप में कॉन्फिडेंस पूरा रहे इसकी जरूरत है। और हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आज तक सुपर 30 में 30 आउट ऑफ 30 रिजल्ट होता है। कभी कभी 28 भी होता है, कभी 22 भी हुआ, कभी 26 भी हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलता है। लेकिन आज दावे के साथ एक नई बात बता रहे हैं कि कोई बच्ची तो बेचारी ऐसे ही कम आती है, अभी भी उसमें बहुत रोक लगा हुआ। लेकिन जो बच्ची आई है आज तक, कभी भी कोई बच्ची बगैर IIT के रिजल्ट दिए हमारे घर से नहीं गई है। इसका इतिहास है। फेल होने वाला लड़का रहता है, बच्ची कभी फेल नहीं होती है, याद रखिएगा। ये हमारे पास ऐसा एक डेटा है, एक समझ है। अब हम आप लोगों से, सारे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, इस बात को समझाना चाहते हैं, इस बात को आपसे बताना चाहते हैं कि हमारा देश जिस तरह से बदल रहा है, अभी और भी बदलने की जरूरत है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है और आप लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। क्या इसको समझिए। अभी हम लोग घर में फर्नीचर कुछ खरीदे, अभी हमारे साथ अग्रवाल आ रही थी, उनसे बात भी कर रहे थे। फर्नीचर कुछ खर्चा, बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं लेंगे, उनकी बदनामी होगी, लिया। करीब 3-4 साल 5 साल के बाद वो टूट गया, पलंग टूट गया, अलमीरा टूट गया, सब चीज टूट गया। तो हम लोग देखा कि अरे ये जो लकड़ी है ही नहीं, ये कुछ भूसा टाइप का चीज को जमा के बनाया गया। तो हमने उस पर रिसर्च शुरू किया कि इतनी बड़ी कंपनी कैसे ऐसा प्रोडक्ट बना सकती है। आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा, मुझे तो पता अभी चला 6 महीना पहले इस फील्ड में घुसा कि आज के तारीख में हमारे देश में जितना ये कुर्सी देख रहे, टेबल देख रहे, ये माइक देख रहे, सब चाइना से आ रहा है, वही मैन्युफैक्चर हो रहा है, वही बन रहा है। आज आप लोग इस पर सीरियसली काम करिए। हमारे लिए ये बच्चे प्यारे प्यारे हैं, बच्चियां हैं जो हम लोग देख रहे हैं, इनके एजुकेशन में इस बात को जरूर शामिल करिए कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका उपयोग क्या है। आप पढ़ाई पढ़ने के बाद नौकरी कर लेते हैं। अभी इनकी बहू का भाई से मुलाकात हुई, हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हमको बहुत अच्छी बात, IIT से पढ़े हुए हैं, बहुत आए हुए भी हैं इस कार्यक्रम में, हमके बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नया क्या कर रहे हैं। तो वैसे वैसे जो नौजवान साथी लोग हैं, बच्चे हैं, बच्ची, आप लोग उनके पेरेंट्स हैं, उनको इनकरेज करिए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे क्रिएटिविटी बने, कुछ नया बने। आज देश हमारा पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया, चाइना को हम लोग क्रॉस कर गए दोस्तों। बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, बार बार इस लाइन को बोल रहे हैं। और हम कुछ बोल रहे हैं तो भाषण मत समझिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का बता रहे। तो जो पॉपुलेशन बढ़ा उसकी उपयोगिता कहाँ है? उसकी उपयोगिता है कि हम लोग भी भूसा का लकड़ी बना के अपना सामान बेचे मार्केट में। क्योंकि अब वो अच्छाई देखिए, क्योंकि कितना हम लोग लकड़ी काटेंगे, कितने जंगल को बर्बाद करेंगे। तो भूसा से बना रहा, दीवार में हम लोग ईंट बनाते हैं, उसके जगह पर कुछ कूड़ा करकट से दीवार बना ले, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करें। आप लोगों के पास पैसा है, रिसोर्सेज है, आप लोग बहुत कुछ नई नई चीजों को कर सकते हैं। अब चमड़ा है, कहाँ से उतना हम लोग हत्या करेंगे, जानवर का चमड़ा लाएंगे, कुछ वैसा बनाए कि चमड़े जैसा दिखने में लगे। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिविटी का हम तो 10 एक 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारा स्कोप है।
उस चीज पर आप लोग सीरियसली काम करिए। आप इस भरोसे मत रहिए कि आप हस्बैंड से बात करिएगा उनका सपोर्ट मिलेगा, नहीं। आप लोग आपस में मिलके, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा यहाँ पर अभी इन लोगों ने बताया ना कि एक आइडिया शेयर करने की जगह है, एक दूसरे को साथ देने की जगह है। इसको मिलकर आनंद कुमार को बुलाया, भाषण हो गया, खाना पीना हो गया। ये बहुत छोटा इसकी छोटा रूप है, एक छोटी सोच है। बड़ी रूप है कि सच में तो 4 साल बाद हमको सुनने के लिए मिलेगा कि आप लोगों ने मीटिंग की और एक कंपनी खड़ी कर दी फिक्की फ्लो के सब साथियों ने लेके, और वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ऐसी 2-4 कंपनियां खुल गई और आइकिया के सामने एक बड़ा आइकिया खड़ा हो गया आपका, जिसमें आप लोगों का नाम हो। क्या है, सब सामान चाइना से आ रहा है। तो वैसा अभी देश में बहुत जरूरत है कुछ नया करने की, और आप लोग कर सकते हैं। मैं ये भाषण के लिए नहीं, अपने अनुभव के आधार पर आपको यकीन दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक बार बहस हो गया, एक मेरा दोस्त था, 3-4 दोस्त, बोला कि अरे यार लड़की औरत क्या करेगी, हम लोग जो कर देते, हमको तो विश्वास नहीं है। बहुत बोला, हम वो क्या क्रिएटिविटी कर सकती है। हमने एक ही सवाल उससे कहा, वो चुप हो गया। हम बोला कि देखो एक बात तुम सोचो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा अनमोल कौन है, बताओ तो भाई, कौन ऐसा क्रिएशन है पूरे वर्ल्ड में जिसका कोई जवाब नहीं। तो बोला कि आदमी है, इंसान है। उसका दिमाग, उसके सोचने की क्षमता ऐसी है कि किसी को अपने बस में, कोई जानवर को, कोई चीज को कर सकता है, बहुत बुद्धिमान होता है। हम कि जितना भी धरती पर इंसान है वो कहाँ से आया, उसकी माँ तो महिला ही न थी भाई। उससे बड़ा क्रिएशन और क्या हो सकता है, वो भी महिला ही क्रिएट कर रही है, पूरा विश्व चला रही है। तो दोस्तों आप लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोग मिलजुल के और बड़ा काम करिए। जहाँ तक हमारी बात है, तो हम लोग तो सुपर 30 चलाते हैं, हर साल 30 बच्चों को लेते हैं। अब जस्ट 1-2 बच्चा का उदाहरण देंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंटेशन लगाया जाए भाई, समझाने का प्रयास करें कैसे कैसे बच्चों को लेते हैं। क्योंकि फिल्म आपने देखा, तो फिल्म में आपने देखा होगा, काम नहीं कर रहा, हाँ, फिल्म में देखा होगा कि देखिए जैसे ये अभिषेक है। आप फिल्म में देखे होंगे कि एक लड़का मुझसे मुलाकात करता है और वो लड़का बेचारा एक बार के रेस्टोरेंट के सामने पढ़ रहा होता है, और उसको देख के, उसको बातचीत करने के बाद मुझे आइडिया सुपर 30 का आता है। तो जो लड़का फिल्म में दिखाया गया वो नकली लड़का तो फिल्म का कलाकार था, ओरिजिनल बच्चा तो ये था अभिषेक। अब सोचिए कि माँ में कितनी ताकत है। ये नहीं कि आप लोगों कहीं भी इसकी कहानी सुना, इसकी माँ को ही हम प्राथमिकता दिए, और जितनी कहानी है उसमें माता जी का कितना रोल है बताते हैं कि इस बच्चा को इसकी मदर पढ़ाती थी, अभिषेक राज को। और अभिषेक राज बहुत मेहनत करता था, और इसकी माँ हमेशा बोलती थी कि तुमको बड़ा आदमी बनना है बेटा, तुमको बड़ा आदमी बनना है। गवर्नमेंट स्कूल में जाता था दोस्तों, जहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, छप्पर तक रूफ नहीं, दरवाजे नहीं, टीचर आते नहीं, सेल्फ स्टडी करते करते 10th तक पहुंचा। 10th में एडमिट कार्ड में फोटो चिपकाने के लिए एक फोटो बनवाने गया, तो इसकी मदर, फादर जो अनएम्प्लॉयड थे, कोई काम नहीं करते थे, माँ ही थोड़ा बहुत 100-200 रुपया से 20-22 साल पहले मुश्किल से एक महीने में कमाती थी। तो क्या की ना कि अभिषेक के फादर के शर्ट को ही मोड़ मार के, देखिए आप, फोटो बना के भेजी कि ले जाओ, जाओ तुम फोटो खिंचवा के लाओ, फोटो बनवा के लाओ। तो फोटोग्राफर एक पासपोर्ट फोटो के अलावा ऐसे ही गिफ्ट में इसको प्यारा बच्चा है बना के दिया। देखिए अपने पिता का शर्ट पहन के ये गुजर बसर किया। 10th का परीक्षा देने जाता था और मेहनत करता था। जब ये 10th अच्छे मार्क्स से पास किया, पटना आया कोचिंग के लिए। कोई नहीं पढ़ा रहा था, कहीं कोई पैसा मांग दे, लाखों रुपया मांग दे, कैसे होगा भाई, कैसे होगा, बहुत टेंशन में था। अंत में माँ बोली कि बेटा तुम कुछ न कुछ करो, संघर्ष करो, हारो नहीं, मैं गांव जा रही हूँ। ये रेस्टोरेंट में काम करता था, एक वकील साहब के यहाँ काम करता था, सीढ़ियों के नीचे सो जाता था, लेकिन पढ़ाई रखता था। जो यहाँ बच्चे आए हैं उनको सीख मिलती है कि आपको तो भगवान ने इतनी सुविधाएं दी, इतना संपन्न माता पिता दिए, और ये बच्चा वैसे पढ़ता था। हमसे मुलाकात हुई, देखे कि आइए मैरून का किताब बना रहा है, सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम। हम कि कोई बात नहीं, तुम आओ हमारे पास पढ़ो। तब हमने सुपर 30 की शुरुआत की, 30 बच्चों को साथ रखा, अब पढ़ाने लगा।
ये बच्चा इतना मेहनती था, इतना मेहनती था। सोचिए, गांव से आया हुआ, देहात से आया हुआ बच्चा, इसको चाइल्ड लेबर के लिए लोग हैदराबाद बुलाता था, दिल्ली बुलाता था, नहीं इसकी मदर जाने दी। मदर को उम्मीद था और मदर का सपना पूरा किया। आईआईटी खड़गपुर में इसको एक सीट मिली। यही नहीं बल्कि देश के हर कोने में काम करके आज अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर है। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए, आप दिखाइए। देखिए अभिषेक राज तो 2-3 मिनट 5 मिनट और हम बोल रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा मैडम से समय ले लेते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। अगला दिखाइए स्लाइड। अगला ये है अनुपम। इसकी माँ झाड़ू पोछा करती थी, मेड थी। अब पिताजी इसके ऑटो ड्राइवर। ये आए हमारे पास, बोले कि बस यहीं रोक दीजिएगा, यहीं रोक दीजिए। आए हमारे पास, बोले बच्चा ऑटो भी पिताजी का चलाने में साथ देता था, पढ़ता भी था। आया हमारे सुपर 30 का टेस्ट लिखा, फेल कर गया। इनकी मदर आके हमारी मदर को बोली कि दीदी पढ़ा दीजिए, दीदी बेटा को पढ़ा। रोने लगी। हमारी माँ को दया आया, हमको भी लगा कि माँ हमारी बोल रही है, चलो पढ़ा देते हैं। इसको रख लिया, आईआईटी किया, आईआईएम किया। अभी 80 लाख रुपया पर ईयर ये अर्न कर रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट शशि नारायण की कहानी अभी जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। शशि 2 भाई। आप लोगों के भी जीवन में दोस्तों एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग डिसीजन लेते हैं। शशि का एक भाई गरीबी के चलते सुसाइड कर लिया, जो आजकल आप सुनते हैं सुसाइड करने की घटना, सुसाइड कर लिया बेचारा। लेकिन शशि हिम्मत नहीं हारा, सोचा कोई बात नहीं, गरीबी है, पढ़ते हैं। सीधा कम बोलने वाला, ऐसा नहीं कि बहुत बोलने वाला बच्चा। 10th पास करके जब हमारे पास आया तो 2 लाइन इंग्लिश नहीं समझता था। हम लोग जब पढ़ाते थे कि देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल चुप हो जाता था। तब बोलते थे देखो भाई त्रिभुज। अच्छा इस पॉलिनोमियल्स का रूट्स निकालो, पॉलिनोमियल्स। अच्छा भाई बहुपद। ऐसे हिंदी में पढ़ा के हर टर्म को इसको सिखाते सिखाते आईआईटी खड़गपुर में गया, लेकिन ब्रांच अच्छा नहीं मिला। वहाँ भी मेहनत किया। देखिए बच्चों, हमेशा एक बार सफलता मिल जाती है। आप लोगों को भी, जो यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं, तो ये मत सोचिए कि जीवन सफल हुआ। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रयास करते रहा, सिखाते गए इसको। आईआईटी खड़गपुर में जाकर इतनी मेहनत इसने की, इतनी मेहनत की। आप गूगल करिएगा शशि नारायण, पूरा इतिहास ही बदल दिया। उतना फर्स्ट ईयर में कोई आज तक मार्क्स ही नहीं लाया था, उतना मार्क्स लाया। और इसका ब्रांच चेंज होकर कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर मेहनत किया और फिर आया हमारे पास। एक खास तरह का मिठाई लेके गांव से आता था हर साल गर्मी के छुट्टी में, समर वेकेशन में। हमने बोला और मेहनत करो। यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बोला कि अब इंग्लिश भी सीख गए सर, आईआईटी में बहुत मेहनत किया प्रयास। अब पूरे यूरोप में ही नहीं, यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई करते हैं। फ्रांस में ये भी अप्लाई किया, परीक्षा दिया, एग्जाम दिया। मैं भी दंग रह गया दोस्तों, इसका रैंक पूरे वर्ल्ड में 1 था। अब जो लड़का 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोल रहा था, ब्रिटिश लेडी से शादी कर दिया। नेक्स्ट तो इसलिए कुछ भी संभव है मेहनत से। नेक्स्ट निधि झा के फादर ऑटो ड्राइवर। नेक्स्ट बेचारी हमारे पास आई, हमसे बातचीत की, हमारे स्टूडेंट बन गई। आईआईटी इसका हो गया। ये एक छोटी कहानी थी, बस यहीं पर रोक दिए। पीछे करिए, हाँ, अरे अरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और पीछे करिए, पीछे जहाँ पर और पीछे और पीछे और पीछे करिए और पीछे। आप बोले नेक्स्ट। तब हाँ, आईआईटी हो गई। इसकी एक छोटी कहानी थी। आईआईटी के बाद भी संघर्ष की। बच्चियां अंतिम तक संघर्ष के, भटकाव बच्चों ही में ज्यादा आता है। तो ही संघर्ष करते रह गई, स्ट्रगल करते करते इतना अच्छा परफॉर्म की कि इस पर फ्रेंच डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई। पूरे वर्ल्ड में 4 बच्चों को सिलेक्ट करके, जिसमें इसका सिलेक्शन था, एक फिल्म बनाई। नेक्स्ट एक बड़ी टीम हमारे यहाँ आई। नेक्स्ट शूट हुआ। अब हम लोग पूरे परिवार को, निधि के पूरे परिवार को प्रीमियर शो में पेरिस बुलाया गया।
जिस दिन पेरिस में शो होने वाला था प्रीमियर, उसके एक दिन पहले हम लोग गलियों में घूम रहे थे, उसके स्ट्रीट में पेरिस के घूम रहे थे। नेक्स्ट, अब बताइए एक टीचर के लिए कितनी बड़ी बात है कि पेरिस के गलियों में इसकी तस्वीर लगी हुई थी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बच्ची का। सोचिए, अरे आप आगे क्यों बढ़ा रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप लड़का है इसीलिए आप में पेशेंस नहीं है, धीरे धीरे चलाइए। नहीं, वही है कि लड़कों में पेशेंस ही नहीं है, तुरंत चाहता है कि रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट, शिवानगी गुप्ता, पिता के बच्ची की कहानी, अखबार बेचती थी सड़कों पर गलियों में पिता के साथ। आई संक्षेप में बता रहे, हमारे साथ मेहनत की और IIT रुड़की से पास आउट होने के बाद आज ये भी 60 लाख रुपए पर एनम कमा रही है और माता पिता के लिए एक अच्छा 4 BHK का फ्लैट भी खरीद दी। नेक्स्ट, तो ये कहानी है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी कहानियां जिंदगी में रियल में आई। ऐसी कहानियों में हमने यही पाया कि ये जो सुपर 30 चलाने की बात हुई ना, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन हमारी माता जी का है। आप फिल्म में भी देखें, यहाँ भी स्लाइड है, दिखाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस रोक दीजिए। हमारे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे, फिल्म में जैसा देखे, कैम्ब्रिज जाना था, मेरा ऑफर आया, एडमिशन हो गया कैम्ब्रिज में, और वहाँ से पैसे नहीं थे कि हमारा फ्लाइट का फेयर कर सके। पिताजी इसी टेंशन में उनका सडन डेथ हो गया। बहुत लंबी कहानी हम संक्षेप में बता रहे हैं, फिल्म में देखे। हमारी माँ ने कहा, देख बेटा, वो माँ ही थी कि ऐसा बोली कि देख बेटा, तू कभी घबराना मत, तुम्हारी इच्छा है आगे पढ़ने की, पढ़ाने की, तो पढ़ो। पिताजी के जगह पर जो नौकरी मिल रही है, करने की जरूरत नहीं है पोस्टमैन की, तुम काम करो अपना। तो हम पढ़ते थे। शाम को माँ दिन भर इसी खराब हालात में पापड़ बनाती थी और हम दोनों भाई साइकिल पर लेके बेचते थे। और शाम को आते थे तो माँ मेरा उत्साह बढ़ाती थी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लो ये खाना खा लो, ये खाना खा लो। तो ये एक माँ ही कर सकती है, एक महिला भी कर सकती है। और फिर जब मुझे लगा कि भाई सुपर 30 बनाना चाहिए, तो माँ बोली कि हम अकेले 30 बच्चों का खाना बनाएंगे, तुम 2 भाई का बनाते हैं ना, तो समझो मेरा 30 बच्चा और आ गया, तुम शुरू करो। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम आदमी रख सकते थे, स्टाफ रख सकते थे। नेक्स्ट, मेरा भाई साथ दिया पर वो नेक्स्ट, इसी हालात में माँ खाना बनाई। करीब 17 साल तक इसी हालात में खाना बना बना के, देखिए माता जी बना रही, अब बच्चों को खिला रही। तो कहने का मतलब, बस खत्म कर दी, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों में असीम क्षमताएं हैं, असीम ताकत है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है कि आप लोग दुनिया में बहुत भारी बदलाव ला सकती हैं। यही मैसेज देना चाहते हैं और बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे, आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, अच्छे घर में आप जन्म लिए हैं, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना कि जितना आप कभी सोचे नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और एक दुनिया को बदल के दिखाइए। इस धरती पर जन्म हुआ है हमारा, आपका, सबका, यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करके इस धरती से नहीं गए, इस दुनिया से नहीं गए, तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यही मतलब रख के हम लोगों को आगे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कर दीजिए, हो गया, ऑफ कर दीजिए। धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू सो मच। ये तो आपने सिर्फ 4 या 5 बच्चों के बारे में बताया है, बट हमें पता है कि hundreds and thousands ऑफ चिल्ड्रन को आपने अभी तक इंस्पायर किया है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको आनंद जी, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आपको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिला है, आप पद्मश्री अवॉर्डी हो। तो कैसा लगा था आपको तब आपको ये पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार का क्या महत्व है आपके जीवन में? सवाल बहुत अच्छा है कि भाई पुरस्कार मिला तो कैसा लगा। सच में अच्छा लगेगा, कोई का मान सम्मान होगा तो अच्छा लगेगा ही। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे बड़ा पुरस्कार है कि हम लोग जैसे साधारण टीचर को, साधारण परिवेश से आने वाले लोगों को आप लोग यहाँ पर बुला के सम्मानित कर रहे हैं, वो पुरस्कार भी कम नहीं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वरना दुनिया तो ऐसी है, दुनिया के मन में ये मैसेज जाना चाहिए
कि हम यहाँ आए बोले, क्योंकि आज भी हम उसी परिवेश में रहते हैं, वैसे ही टूटी गाड़ी से चलते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ नहीं लाई, कोई बदलाव नहीं लाई। आप लोग एलीट क्लास के लोग हैं, वैसे लोगों के लिए भी सोचते हैं, वैसे 30 बच्चों के लिए भी भाव रखते हैं। ये मैसेज समाज में जितना जाएगा उतना जो अंतिम पैदान के लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आपने काम किया, इसके लिए ये कोई सम्मान से बड़ी बात है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा आनंद जी। आनंद जी, सुपर 30 का मेन एम था अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना, और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी और उसको आपने कैसे पार किया? देखिए, आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। हम जस्ट ऐसे ही बातचीत के दरमियान आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई एक आदमी बताए कि सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज क्या रहा होगा? कोई बता सकता है? पैसा सबसे बड़ा, सब लोग यही सोचता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था वहाँ के माफियाओं से लड़ के आगे निकलना। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, और हम वो चैलेंज बताना चाहेंगे कि इतना खतरनाक चैलेंज था कि आप जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी भी हमारे पास बिहार पुलिस का कई लोग AK-47 है कार्बाइन लेके घेरे हुए रहता है बिहार में, तो हमारी जिंदगी चलती है। आज की बात हम बता रहे हैं। हम थैंक्स बोल रहे हैं अपने CM नीतीश कुमार जी का, उन्होंने मदद की और ये सुरक्षा दिया। तो वहाँ ये चैलेंज बहुत था। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। पूरा कोचिंग माफिया हम पर लग गया। कोचिंग माफिया की बहुत औकात नहीं थी, उसकी बहुत क्षमताएं नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिशियन लग गए, क्योंकि वहाँ पर ईर्ष्या भाव और जेलसी भाव बहुत है कि क्या बात है भाई, हम इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, हमको रितु जी ने तो फिक्की फ्लो में बुलाया नहीं, आनंद कुमार को बुला लिया भाई। तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या भाव रहता है। इस तरह के कई उपलब्धियों पर, अचीवमेंट्स पर ईर्ष्या भाव रहता है, इसलिए अटैक बहुत था। हम आप फिल्म में देखा होगा, एक अटैक था, वैसा वैसा 5-5 अटैक हुआ है। हम स्लाइड दिखाइए, एक आध दिखा देते हैं, एक आध तस्वीर है, आज जहाँ तक था उससे आगे बढ़ाइएगा। एक ऐसा अटैक था, सब लोगों ने जब धमकी दिया, जेल में बंद सबसे बड़ा क्रिमिनल माफिया धमकी दिया कि चाहे जो हो जाए तुम इसको बंद कर दो। हम कहे भाई जो हो जाए हम बंद नहीं करेंगे। धमकी जब फोन से आया, आपको यकीन नहीं होगा, पुलिस आके बोली आप घर से मत निकलिए, आपकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो किसी की भी हत्या कर देता है। अब बताइए, हम लोग जाके ट्यूशन पढ़ाते थे, 2 पैसे लाते थे तो बच्चे खाना खाते थे, वो हालात थी। हमारा परिवार खाना खाता था, कैसे हम नहीं निकल पाते। हम पर हमला हुआ, और एक हमला तो इतना खतरनाक था, और आगे बढ़ाते जाइए, और आगे बढ़ाते जाइए, 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 आगे बढ़ाते जाइए। देखिए एक हमला तो इतना खतरनाक था, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को यहाँ से लेके यहाँ तक पेट में चाकू से पूरा फाड़ दिया, और हमें भी गोली के छर्रे लगे। दोनों पटना मेडिकल कॉलेज में हम लोग थे, सब कहा सुपर 30 बंद कर दो, सुपर 30 बंद कर दो, लेकिन 300 बच्चे हमारे साथ खड़े थे कि सर हम क्या कर सकते हैं। और जब मुन्ना को ऑपरेट करने की ज़रूरत हुई, ब्लड की आवश्यकता हुई, तो 6 बोतल ब्लड मांग रहा था वो लोग। सारे बच्चे होड़ लगा दिए, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करो, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करो। उत्साह बना रहा, ये प्रोग्राम चला। नेक्स्ट दिखाइए। तब फिर जब दूसरा तीसरी बार हमला हुआ, तो हमारे बच्चे, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, क्यों हमला होता है भाई, हम लोग किसी का बिगाड़ते नहीं। अभी आपने तस्वीर में देखी होगी, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा जी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, सब लोगों ने कहा पैसे ले लो, पैसे ले लो। हमने किसी से 1 रुपया भी डोनेशन आज तक नहीं लिया। कहीं लेक्चर दे दिए, कोई प्रोग्राम से कुछ पैसा आ गया, उसी से मेरा परिवार का और 300 बच्चों का खाना चलता है। फिर काहे हमला होता है भाई, हम लोग बोले कोई गवर्नमेंट से, प्राइवेट एजेंसी से कभी पैसा नहीं लिया। तब जाके नेक्स्ट, तब हमारे CM साहब ने सिक्योरिटी दिया। वो आज भी ऐसे ही हम चलते हैं। वहाँ हैदराबाद में कोई डर नहीं है, या घूम रहे हैं, लेकिन जब उस इलाके में जाते तो फिर अलर्ट होना पड़ता। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि चैलेंज मेन था कि उन माफियाओं से लड़के, फिल्म रिलीज होने वाली थी गुवाहाटी हाई कोर्ट में,
मुकदमा करवा दिया, कई यूट्यूब पर निगेटिव वीडियो डाल दिया, फ्रॉड सिद्ध करने का प्रयास किया, पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। हालांकि हम जहां भी कोर्ट में अपीयर होते थे तो केस खत्म हो जाता था, खारिज हो जा सकता था, कोई उसमें डिसमिस होने कुछ था ही दम नहीं। लेकिन अब कोई मान लीजिए कि मुकदमा कर दिया, उसी को खबर बना दिया अखबार में, आनंद कुमार एक्यूज्ड फ्रॉड, अब बदनाम कर रहा है, तो फिल्म रोकवाने का प्रयास किया बहुत। तो चैलेंज ये था, उसमें पैसा तो था ही चैलेंज, लेकिन ये था। लेकिन आप लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है, हमेशा साथ मिलते रहा। हम इनको भाभी जी भी बोलते हैं क्योंकि इनके एक देवर हैं रोमित भाई, हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने परिचित हैं। तो रोमित भाई का फोन आता था उस समय कि भाई कोई हम मदद कर सकते हैं बताइए, तो इतना लोग बोलते हैं, साथ देते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी। आनंद जी, आज के एजुकेशन सिस्टम में एज एन मैथमेटिशियन हैं आप एकेडमिक्स से आपका अपना नाता है, तो आप ऐसे क्या चेंजेस है जो आप आज के सिस्टम में लाना चाहते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को मोर इंक्लूसिविटी फील हो या बहुत इकोनॉमिक इक्वालिटी फ्री फील हो स्टूडेंट्स? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। दो चीज़ हम लाना चाहते हैं। पहली बात कि बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो उनको रटाया नहीं जाए, समझाया जाए। जैसे हम लोग बच्चों को करते 72 और 28 को मल्टीप्लाई करो, तो बच्चा पहले 8 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 28 है नीचे, तो फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करता है तो एक कॉलम आगे बढ़ जाता है, फिर खटखट ऐड करता है तो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ऐसा करने से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यों? बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। एलसीएम निकालने की बात है कि भाई 8, 9, 4, 6 कुछ नंबर से एलसीएम निकालो, इस तरह से बच्चा अंडरलाइन किया, फिर 2 कॉमन देखा, फिर खट मल्टीप्लाई किया, लिस्ट कॉमन पर मल्टीपुल आ गया। ऐसा करने से आ जाते हैं। ये सब हम लोग अभी तक शुरू क्लास 1 से लेकर 12th बच्चा कर जाता है, हम लोग बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। तो बच्चा क्या है ना कि सब्जेक्ट को रटने लगता है, उसको उस पर वो जब चीज़ों को आप रटने लगेगा, समझिएगा नहीं तो आप पर एक बर्डन होगा, बच्चा बर्डन फील करता है। तो ये बर्डन को हटाना चाहते हैं, नंबर 1। और दूसरा जो एजुकेशन है ना, उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसकी उपयोगिता क्या हो, इस पर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो सके, सब चीज़ हम लोग बना पाए, किसी पर हम लोग डिपेंडेंट न रहे, इसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों को लेके हम लोग चलेंगे तो एजुकेशन का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने आनंद जी। आनंद जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो क्वालिटी स्टूडेंट्स में रहनी चाहिए, द स्टूडेंट्स नीड टू वर्क ऑन, वो 2-3 कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसे स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे उन्हें सक्सेस मिले? हम लोग अपने सुपर 30 के बच्चों को इतना साल पढ़ाया, 20 साल, 20 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस लिया उसको 4 मंत्रा में हमने बांधा है उसको। और हम बच्चों के साथ साथ जो बड़े भी यहाँ बैठे उनको भी बताना चाहेंगे कि अगर आप लाइफ में 4 मंत्र को आप 1 साल तक उसको प्रैक्टिस में ले आइए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, चाहे, अरे बहुत बार आदमी सोचता है, हम भी सोचते नहीं कर पाते हैं, कई बार सोचते हैं अच्छा फिर खा पी लिया, भूल गए, अपने काम में लगे। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या आप कोई नई कंपनी बना रही है उसमें, या जो आपको बच्चों को पढ़ा के जीवन में उनको आगे बढ़ा। 4 चीज है। पहला है कि आप में ट्रेमेंडस थ्रस्ट होनी चाहिए, प्रबल प्यास हम लोग हिंदी में बोलते हैं। कोई भी काम कर रहा है बच्चा ना, उससे अच्छा आईआईटी करना है, दिन भर दिमाग में आईआईटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप कोई नई कंपनी बना रही है तो दिन भर कंपनी की बात आनी चाहिए। अभी कुछ लोगों ने आके अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो जो आप कंपनी में, जो फील्ड में, उसी की बात, जर्मनी जैसे हो, तो जर्मनी में हमारी कंपनी वाले लोग क्या नया कर रहे हैं उसको रिसर्च कर रहे हैं। लंदन, तो लंदन का बिल्डिंग और वहाँ का सब चीज ना देख के आपके दिमाग में वहाँ आपके फील्ड में क्या हो रहा है ये दिमाग में चलनी चाहिए। तो सोते जागते खाते पीते एकदम प्यास से भरे रहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले, उसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे एक फिश है, मछली बिना पानी के नहीं जी सकती, वैसे आप बिना सोच के नहीं रह सकते, जो फील्ड में आप, वैसी प्यास। दूसरी बात हम बच्चों को सिखाते हैं अपना कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहिए।
हमारे लाइफ में कितना भी निगेटिव होता है, कुछ भी होता है, तो पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। और ज़बरदस्ती नहीं, ये स्वभाव में आ गया, ये बिहेवियर में आ गया। और हम दावे के साथ करें कि जीवन में हमारे हर चीज़ हम प्राप्त कर लिए जो हमने कभी कल्पना किया, उसमें एक ही मंत्र का ध्यान रखा, पॉजिटिव रहे। हमारी वाइफ बोलती है बहुत बार, भाई बोलता है बहुत बार, अरे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 10 निगेटिव, अरे चलो इसमें भी पॉजिटिव खोज लो। इसलिए कभी भी आपकी हार होगी, ऐसा तो 1% या 0.1% भी कभी मत सोचिए कि आपकी हार हो सकती। लगे रहिए। हमने देखा, बहुत लाइफ में देखा, बहुत खुल के बोल रहे हैं कि बहुत बार देखा कि जो हमने सपना देखा, जो सोचा कि अच्छा ऐसा एक इंस्टीट्यूट चलाएंगे, अच्छा मैथमेटिक्स का एक ऐसा फार्मूला डेवलप करेंगे, हर सपना पूरा हुआ। सोचते थे कि भाई 1 साल में पूरा होगा, हो सके 2 साल लगा, 3 साल लगा, 4 साल लगा, लेकिन सपना पूरा हुआ। इसलिए आप पॉजिटिविटी से भरे रहिए। तीसरी बड़ी बात है हार्ड लेबर। इसका तो कोई जवाब नहीं। अगर पैसे से पढ़ाई होती तो हर पैसा वाला पढ़ जाता, पैसे से व्यापार होता तो हर अमीर का बेटा बड़ा व्यापारी बन जाता। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे बच्चे अभी आप 4:30 बजे जाइएगा पढ़ते मिलेंगे, और 4:30 बजे सुबह जाइएगा तब भी पढ़ते मिलेंगे। पढ़ाई के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं। तो हार्ड लेबर, जितना परिश्रम आप कर सकते हैं। अभी बताया कि भाई वो बच्चा मिला, इनकी बहू का भाई, उन्होंने बताया कि सर हम 2 साल 12-12 घंटे पढ़े। अभी बात हो रही थी तो ये सच्चाई है। रैंक अच्छा है, IIT कानपुर में गया बच्चा। तो कहने का मेरा मतलब एकदम हार्ड लेबर करना हम लोग को। और तो पहला है भाई ट्रेमेंडस थ्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, और तीसरी बात है कंटिन्यूअस हार्ड लेबर। लेकिन चौथा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको होना चाहिए ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बहुत बार आप चाहिए कि अच्छा कर दें, एक कंपनी को बड़ा कर दें, कुछ नई तब्दीली ले आए, घर को बड़ा कर दे, कुछ कर दे, बच्चे को पढ़ा दे, बच्चा चाहेगा पढ़ के UPSC कर ले, बड़ी कंपनी में चल जाए, हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाए। तो बहुत बार पॉजिटिविटी मिलते मिलते भी लगेगा कुछ दिन में निराश हो जाएगा कि छोड़ दो, इससे अच्छा है कि दूसरा काम करो। आदमी टूट जाता है, बदल जाता है, लेकिन उसको टूटना नहीं है। अपने आप को पेशेंस रखना रहता है। कभी कभी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम बच्चों को देते, कहते बनाओ, नहीं सर ये तो IIT का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बहुत टफ है, IMO से भी ज़्यादा, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से भी ज़्यादा टफ है। यार ट्राई करो। बनाता है, सॉल्व करता है। 10 दिन के बाद पूछते बना, नहीं सर नहीं सॉल्व हो पा रहा है। फिर 5 दिन बाद पूछते सॉल्व हुआ, नहीं सर सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, अब कुछ पता नहीं चल रहा। यही तो जीवन है। रात जितनी गहरी होती है, अंधेरी होती है, सवेरा उतना नजदीक होता है। इसलिए घबराना मत। बच्चा फिर प्रयास करता है, कुछ ना कुछ बच्चे प्रॉब्लम को चाहे कितना भी टफ हो सॉल्व कर देते। तो चारों बात को मन में रखिएगा। बहुत दिल से बता रहे हैं, कोई फील्ड में है 1 साल तक अगर आप साथ लिए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। आनंद जी मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस है, बट मैं 2 और पूछूंगी बिकॉज आज बच्चे आए हैं एंड काफ़ी पेरेंट्स हैं, उनको भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है आनंद जी कि पढ़ाई का, बोर्ड्स का, एंट्रेंस का काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पर और उनके पेरेंट्स पर भी। जितना बच्चों पर नहीं होता है उतना पेरेंट्स पर प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट हो एंड वही टॉप करे। तो बहुत प्रेशर है आज के ज़माने पे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि बच्चे फोकस्ड रहें और ना कि पढ़ाई को प्रेशर की जैसे लें? देखिए बच्चों से ज़्यादा कष्ट माता पिता को है। माता पिता ज़्यादा प्रेशर में आते हैं। अभी एक मोहल्ले में एक महिला रहती है, बेचारी बहुत मुश्किल से टीचर उचर बनी और अपने बच्चे को पढ़ाती थी। तो उसका बच्चा IIT बहुत अच्छे रैंक से किया। ये सुन के दूसरे मोहल्ले के लोग प्रेशर में आ गए और अपने बच्चों को समझाने लगे, देखो उसका बच्चा ऐसे कर गया, ऐसा कर गया। तो माता पिता का काम है कि बच्चों पर प्रेशर न बनाए। आप देखिए कि हमारे अभी मित्र हैं मनहर भाई ककाड़िया, एक सूरत में है, डायमंड का काम करते हैं, बिल्डर हैं, 4वीं कक्षा पास है। केवल क्लास 4 तक उन्होंने पढ़ाई की और कई हजार करोड़ की कंपनी यहाँ भी है, US में है। तो पढ़ाई से क्या हो गया, बहुत आदमी पढ़ पढ़ के कहीं कंप्यूटर जाके चश्मा लगा के कर रहा है काम, बेचारा मुश्किल से 2 लीटर पेट्रोल बच जाए इसका हिसाब लगा रहा है। तो इसलिए प्रेशर मत बनाइए, उसको खिलने दीजिए। हाँ, लेकिन अगर मनहर भाई पढ़ लेते, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो वो फेसबुक खड़ा कर देते, वो टेस्ला बना देते कंपनी। पढ़ने का बहुत फायदा है,
लेकिन कभी भी प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। जो स्वतः होता है ना वही अच्छा होता है। हम पर अगर प्रेशर सब बना देता है कि काहे के लिए गरीब बच्चा को पढ़ा रहे हो, अरे नौकरी कर लो, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता तो बिहार पब्लिक कमीशन है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता यूपीएससी करके कहीं आज पोस्टेड रहते, इनकम टैक्स में चाहे पुलिस में कोई एक अधिकारी रहते, एक ऑफिसर रहते, तो आप लोग तो फिर बुलाते नहीं हमको। तो इसलिए अच्छा है कि भाई उसको छोड़ दीजिए, जैसे खिलना है। हाँ, बच्चों को में ये मोटिवेशन डालना चाहिए तुमको बड़ा करना है। हमारे पिताजी एक ही बात सिखाते थे जो बच्चों को कहना चाहे कि देख बेटा, इस दुनिया में आए हो, कोई भी काम करो हमारे तरफ से प्रेशर नहीं है, लेकिन कोई भी काम करो तो उसको दुनिया का सबसे बढ़िया काम हो ऐसा करने का प्रयास करो, सबसे बढ़िया, और जब रिजल्ट आए तो सबसे कुछ अलग हो। इसी फार्मूले पर मैंने जीवन जिया है। आनंद जी, इस साल का हमारा एक इनिशिएटिव है सस्टेन हर एजुकेशन, जहाँ पर हम डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किलिंग और कई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जैसी संस्थान, हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऐसे करे जिससे एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क हो, और हम कैसे इम्पैक्ट हम हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं? आप लोगों के पास तो बहुत पावरफुल लोग हैं, आप लोग बहुत सक्षम लोग हैं, कैपेबल है। आप लोग मिलजुल कर, हमारे समझ से लोग इसकी बड़ाई कम करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अभी प्रयोग होने बाकी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग प्रयास करिए, आप लोग मिलजुल कर एक ऐसा सेंटर एस्टेब्लिश करिए कि आप सिलाई करने का काम, कुछ रोजगार संबंधी ट्रेनिंग, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को लाकर उसको पैकेज बना के रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ लाइव वीडियो ऐसा बनाइए, उससे देश में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जो बेचारी एक गया के छोटे से गांव में बच्ची है, वो बच्ची पढ़ाई छूट गई है, उसको थोड़ा इंग्लिश काम चलाओ वर्केबल बोल ले, इस तरह का कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप उसको दिला सकते हैं ट्रेनिंग की कैसे कुछ खाना पकाने का काम करें। अभी हम दिल्ली जाते हैं, फूफा जी हमारे उन्हीं के यहाँ रुकते हैं, जैसे अभी भी भाया दिल्ली गए, कभी आए, रुकते हैं तो बेचारे अकेले रहते हैं। वहाँ एक बच्ची आती है, तो बच्ची आती है करीब 20-22 साल की, खाना उसके बहुत मजबूर लाचार बच्ची है, तो वो आके खाना उना बनाती थी, थोड़ा सफाई उफाई करती थी, चली जाती थी। तो हमसे बातचीत हुई, तो हम उसको बोले कि देखो, मालती नाम है उसका, कि देखो मालती, ऐसा करो तुम कि तुम यूट्यूब उसको देखना सिखा दिए। एक मोबाइल सेकेंड हैंड उसको दिया, हम यूज मोबाइल था कि देखो यूट्यूब देख ली, तीसरे चौथा तक पढ़ी थी, समझ गई वो। अब वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि 5 स्टार होटल फेल है। क्यों? क्योंकि हमने उसको दिखा दिया कि देख भाई ऐसे खाना बनाओ, तो अपने खोजते रहती, बोल के सर्च कर लेती है, पनीर पकौड़ा, उसमें पूरा अपना देखती है, दिल्ली का चाट, और वैसा बना देती है मेहनत करके, उसमें वो प्यास है काम करने का। तो अगर इस तरह का हम लोग अच्छा वीडियो के जरिए एक सर्टिफिकेट दे के प्रोत्साहित करें खाना बनाने के लिए, सिलाई के लिए, तो बहुत बड़ा। तो निष्कर्ष मेरा कंक्लूजन ये है कि आप लोग ऑनलाइन एक अपने कम्युनिटी के तरफ से बनाइए, अच्छा ऑनलाइन, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 10 लाख 20 लाख में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और उससे 10-20 लाख लोगों की ज़िंदगी कम से कम बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। इसी हम ऑर्गेनाइजेशन हमारा 3 लेवल पर ही काम करता है, जो कि एक ग्रास रूट लेवल है, मीडियम है, सीनियर है। तो हम सबको उन हिसाब से ही जैसे आपको बुलाया आज सीनियर लेवल को हमको इंस्पायर करने, हमारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आज हमने आपको बुलाया। तो आई विल एंड द सेशन हियर विद माय क्वेश्चंस, दो आई हैव many questions to ask him. I would now like to open the session for the Q&A. So yes, Anand ji will be now taking questions from members' children. We have a lot of young generation here today. Please pass on the mic to them. Take the mic, no, and also give a lot of options to children also if they would like to ask the question. आपने सुपर 30 में मोस्ट ऑफ देम आर, आपने IITians को बनाए, उसके अलावा और कुछ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन के लिए भी ट्राई किए थे आपने? जी, अभी हम लोग तो IIT के अलावा हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पर काम कर रहे हैं। हो सके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगे और वक्त, जिसमें एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहेंगे जिससे हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख ले। हो सके IIT नहीं करे, ITI ही कर ले, लेकिन कुछ सीख ले,
मेरा ये प्रयास है। दूसरा हमारा एक ड्रीम है कि स्कूल खोलने का, एक ऐसा स्कूल खोलने का जिसमें क्लास 6 से बच्चे आए और हजारों बच्चे पढ़े हर साल क्लास 12 तक। और कोई ज़रूरी नहीं कि IIT, कोई बिजनेस का कोई कोर्स कर ले आगे चल के, कोई अच्छा कलाकार बन जाए, कोई भी एक काम करे तो अच्छा करे। ऐसा है कि स्कूल पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन बनेगा उसका इनॉग्रेशन होगा, हम रितु जी को जरूर खबर देंगे, आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। उस बार हम आप लोगों को इनविटेशन देंगे कि आइए स्कूल घूमने। नमस्कार आनंद, नमस्कार आनंद सर, मैं भी बिहार से हूँ, मेरा नाम उज्जवल है। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। मुझे 10वीं में 95% है, फर्स्ट ईयर में 98% है। सर मैं आपके सुपर 30 प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। आप अच्छे घर से हैं, आपके पास साधन है तो क्यों करिएगा ज्वाइन। लेकिन फिर भी आपकी गर्मी के समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन, जब भी मौका मिले यहाँ से कांटेक्ट ले लीजिएगा। आइए 1 महीने 2 महीने क्लास करके जाइए। बहुत लोग आते हैं शौकिया, तो हम लोग बैठने का इजाज़त भी दे रही है, कुछ 10 दिन 5 दिन कुछ सीख ही के जाइएगा, इसलिए वेलकम है आपका। सर फिलहाल मैं 12th में हूँ, अगले साल मेरा JEE मेंस है और IIT भी है। तो फर्स्ट ईयर में उतना परफेक्ट नहीं हूँ और 12 तो अच्छा ही चल रहा है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस करने के लिए अच्छा हमारे पास आइएगा, सब अच्छा हो जाएगा, यही काम हम करते हैं। आइए, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार आनंद जी, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन ट्रेनिंग या टीचिंग आप बोल रहे थे ना, अगर हम लोग ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए तो आप रेडी है कि ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए यहाँ पे एक सुपर 30 टीम क्रिएट करेंगे, तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग ऑनलाइन? जहाँ तक भी जो भी कहीं कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बिना कोई पैसा लिए एकदम निस्वार्थ भाव से जरूर उसमें जहाँ तक हमारा समय मिलेगा जरूर सहयोग करेंगे। देखिए हमारा आपका सबका मकसद है कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करें, तो अच्छा करिएगा तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारा भी सपना उस दिन सच में साकार होगा जिस दिन आप लोग मिल के कोई प्लेटफॉर्म बना दीजिएगा और 1 लाख बच्चे बच्चियाँ कुछ सीख के अपना जीवन यापन करने लगे, गरीबी का रोना न रोए, उनके पास कोई अपना रोजगार हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जरूर आपके साथ। थैंक यू आनंद जी, आई विल बी वर्किंग ऑन इट। मेरे को एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ 30 को क्यों सिखाते हो, 20 या 50 को क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बच्चे, इसलिए बैठ जाइए, सुनिए आराम से जवाब। क्योंकि जब हम शुरू कर रहे थे ना तो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिल्म में भी आपने देखा, भाई मेरा इसको पूरा परमाव देख रहा था, तो हम लोग बोले कि 30 बच्चों तक लेके देखते हैं, शायद रख ले। भाई बोला अरे भाई 30 बच्चा कहाँ से, 10-15 रखिए। हम कह रहे रखो, देखते हैं। करते करते तो 30 बच्चों को सरवाइव करने के लिए, वहाँ रहने के लिए जगह थी, इसलिए 30 बच्चों को रखा। हमने नाम भी नहीं रखा इस ग्रुप का सुपर 30, इसलिए फिल्म में पहला साल की कहानी दिखाई गई है, उसमें नाम भी नहीं करे सुपर 30 में आओ, ऐसे ही पढ़ाने लगे। तो पहला साल रिजल्ट आया तो हम लोग बहुत खुश हुए, दूसरा साल रिजल्ट आया तो बहुत खुश हुए, तीसरा साल हमारी मदर बोली कि वाह बच्चा बहुत सुपर है। क्या बच्चा है, 30 बच्चा है, 30 सुपर 30। करते करते बाद में हमने प्रोग्राम का नाम 3 साल के बाद रखा सुपर 30। तो ये था कि इनका जवाब एक लाइन का है, क्योंकि उस समय हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही थे, इसलिए उतना सोचा। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के हम लोग इसको बहुत बड़ा स्कूल के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते आनंद कुमार जी, आई एम बिंदु। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। आपके सुपर 30 के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल निकले थे एंड दे आर सेटल्ड, वर्ल्ड के हर कोने में सेटल हो गए। तो आपके अलुमनाई नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रांग है। तो आप IIT का एक्सेप्टेंस रेट, हमारी कंट्री में कंपटीशन ज़्यादा है और एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत बहुत कम है। तो आप कुछ इसके आगे कुछ बियॉन्ड दिस आप कुछ प्लान कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे कि दे ऑल गेट क्रिएटिव नॉलेज, जैसे IIT के समान बिट्स है, 1-2 इंस्टीट्यूशंस है, ज़्यादा नहीं है, बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस है इंजीनियरिंग के
वो सब बहुत नॉर्मल है. दे डोंट एनकरेज क्रिएटिविटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो आप ऐसा कुछ बियॉन्ड दिस आईआईटी आप कुछ पैरेलली कुछ प्लान कर रहे हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और एक चीज़ और हम आपको आप लोगों से शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि हम लोग हिंदी बोलेंगे ना तो गड़बड़ भी बोल देंगे, कुछ बिहारी टोन भी आ जाएगा, कुछ इंग्लिश का भी वर्ड आ जाएगा, लेकिन साउथ के लोग हिंदी बोलेंगे तो इतना संभाल के बोलेंगे कि एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसलिए आपकी हिंदी अच्छी है। दूसरी बात कि अभी मेरा वैसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट को खोले, अभी तो स्कूल का है, लेकिन कई लोगों ने बोला कि आप इसको शुरू करिए। कई गवर्नमेंट भी से बातचीत चली, उन्होंने लैंड देने के लिए भी बोला, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान होगा, कोई आइडिया होगा, तो हम लोग मिलजुल के कुछ सोचेंगे आगे फ्यूचर में कि क्या बड़ा अच्छा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कई लोगों ने सजेस्ट किया है, तो इस पर सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। लेकिन अकेले हम लोग तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, हम लोग 2-4 लोग हैं, लेकिन आप लोगों जैसे 2-4-5 लोग जुड़ते हैं, कुछ नया हम लोग और बड़ा करते हैं तो हम सुविधा होगी। क्योंकि कोई से हम डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई से उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन अगर कोई सहयोग देना चाहता है, काम में कोई हेल्प करना चाहता है, तो उसको हम वेलकम करते हैं। हमारे लिए ये बहुत गुड लक होगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर, हाँ नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान है। मैं खुद एक आईआईटी से पढ़ा हूँ और मैं यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको आईआईटी जाने के लिए मेरी कोशिश ये है मैं उनको पढ़ाता हूँ। एक रीज़न ये है क्योंकि मैं आईआईटी में मेरे को मेरी पत्नी मिली तो हम दोनों आईआईटी से। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, आज के टॉक में मेरे को ये लगा कि आपका फोकस ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत है। मेरे को जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ मेरे को ये चैलेंज आता है कि बच्चों को समझाने में सिखाने में काफ़ी मुश्किल होती है जो फिज़िकल क्लास में नहीं होती है। एक वो है, और सेकंड जैसे ऑनलाइन पढ़ाने के टाइम पे ऐसे क्या करना चाहिए ताकि आप बायजूस जैसे ना बन जाएं? नहीं देखिए, हम आपने तो नाम भी ले लिया, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं भाई, ताकि हमारी पॉलिसी है कि किसी का नाम लेके किसी का शिकायत नहीं करना। लेकिन आप ये जान लीजिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जब सुपर 30 की लोकप्रियता हुई, फेमस हुआ, तो 4-5 साल के बाद ही लोग आते थे कि फ्रेंचाइजी खोल दीजिए, इसका ब्रांच बना दीजिए, तो ऐसे कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। उसको हमने अवॉइड किया। अभी कोविड के बाद फिल्म आ गई, उसके बाद कोविड आया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां 100 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार था कि 3 साल के लिए आप आइए, कुछ मत करिए, मेरा केवल टी-शर्ट पहन लीजिए, वीक में एक आध दिन क्लास ले लीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। हमने मना कर दिया। अभी देखिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हमारे ऋतिक रोशन जी रहे, सोनम वांगचुक रहे, सब ने ऐड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हम उस कंपनी के लिए ऐड भी नहीं किए। बहुत लोग कहा कि 4 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप ऐड बना लीजिए, कुछ नहीं किया। क्योंकि अपने आप को बचाए रखना भी इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। हम हमेशा ही सोचते हैं कोई पैसे का बहुत बड़ा ऑफर आता है और जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, कि भाई आज मान लिया जाए कि हम एक मामूली गाड़ी से चल रहे हैं और कल बहुत महंगी गाड़ी से चलेंगे, उससे हमारा जीवन में भी कोई चेंज नहीं आएगा और सोसाइटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हम आज 4 कमरे के मकान में मेरा पूरा परिवार रखता है, कल 20 कमरे में, उससे ना हमारे परिवार में चेंज आएगा न सोसाइटी में चेंज आएगा। तो हमेशा यही एक पैरामीटर है हमारा सोचने का कि क्या कुछ करें, ऐसा करें जिससे हमारे लाइफ में चेंज आता है तो ठीक है, और फायदा होता है, सुकून महसूस करते हैं तो ठीक है। और पैसा से कभी भी सुकून नहीं मिलता है, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जहाँ पर जितना पैसा आ गया ना, उसके बाद और ख्वाहिशें बढ़ जाती। ख्वाहिश भी बड़ी चालाक होती है, आपसे आगे चलती है, तो हमेशा वो आगे आपको खींच के लेके चली जाएगी। तो उस चक्कर में आपको दौड़ते रहिए, जीवन में पीछा करते रहिए। अब आपका अच्छा सवाल है, इस पर बड़ा सीरियस जवाब देना चाहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में जितने अभी तक पूरे दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होना बाकी है। वो टीचर पर डिपेंड करता है। आप लोग देखिए, 2-3 घंटे की फिल्म देखते होंगे, 2 घंटे की फिल्म मान लीजिए, फिल्म खराब होती है तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बात करते हैं कि यार पैसा दे दिए तो पूरा देख लो, लेकिन पीछे से आवाज आती है कि छोड़, तो पैसा भी गया, तो दिमाग में दर्द ला देगा, चलो छोड़ो चलो।
पैसा देके भी आदमी भाग जाता है। लेकिन कई ऐसी फिल्में होती है, हम लोग जानते हैं कि नकली है, लेकिन उसके सीन को देखने के बाद आदमी के आंख में आंसू आ जाता है। कई ऐसी फिल्में होती है जो हंसा देता है, यानी फिल्म पूरे दर्शक को, जो हमारा ऑडियंस होता है, व्यूअर्स होता है, उसको पूरा बांधे रखती है 2 घंटे तक। और बहुत अच्छी फिल्म देखिएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि 2 घंटा कैसे समाप्त हो गया। जैसे अभी हम लोग इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, अब 2 घंटा हो चला, पता नहीं चला कि 2 घंटा से बैठे हुए। उबाऊ होने पर टाइम मुश्किल है, इसीलिए हम लोग टीचिंग को बेहतर बनाएं, उसमें म्यूजिक डाल के, कुछ क्रिएटिविटी डाल के, तो ऑनलाइन क्लासेस को भी इंजॉय करेगा। जब फिल्म को इंजॉय करता है तो ऑनलाइन क्लासेस को नहीं क्यों कर सकता। अभी हम लोग एक ओमान में, एक दोहा में, 2 जगह पर हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्लासेस का भी हाल में वर्कशॉप किया। 476 बच्चे पहले दिन थे और अंतिम दिन भी उतना थे। यही हमारी क्लास की सफलता है 2 वीक चलाने के बाद। तो आप कैसा पढ़ाते हैं इस पर डिपेंड करता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। Did you ever hire any teachers or need any helpers for English? हाँ, फिर से पूछिए, कोई बात, इंग्लिश में पूछिए, फिर से बोलिए। Did you need any teachers or helpers for English? अच्छा, हाँ, समझे, हाँ। तो इनका टीचर को हायर किया कि नहीं, हमारे पास हमेशा एक टीचर हम तो हैं, लेकिन थोड़ा पैसा आया संस्था में तो हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक टीचर हायर किया। उन लोगों को हमने साथ रखा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको अच्छा कोई पैकेज दे देता है, साल 2 साल में लोग जान जाता है कि सुपर 30 में पढ़ा रहे, तो कहीं और चले जाते हैं, फिर नए आते हैं। ऐसी ही दुनिया चलती है। सुपर 30 का इन जनरल हम लोग रूटीन रखते हैं कि सुबह में क्लास 6 बजे से हम पढ़ाते हैं 8 बजे तक। फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट जैसी बच्ची पुची कुछ टीचर से पढ़ाते हैं 10 बजे 11 बजे तक। बीच में ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत होता है। फिर उसके बाद बच्चे अपने ही पढ़ते, सेल्फ स्टडी। हम लोग 4 से 6 घंटा डेली पढ़ाते हैं। बच्चे अपने पढ़ते हैं और वीक में 5 डेज ही पढ़ाते हैं। बाकी जैसे आज यहाँ आ गए तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ है, छुट्टी भी होगी तो कोई बात नहीं। बच्चा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करता है। शुरुआती दौर में जब इनिशियल फेज होता है हमारा, तब क्या होता है कि इनिशियल फेज में हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। बाद में आपस में बच्चों का ऐसा बाउंडेशन होता है कि बहुत बार अब ज़्यादातर प्रॉब्लम अपने ही डिस्कस करके वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यही शेड्यूल है मोटा मोटी। लेकिन बच्चे हमेशा मेहनत करते रहते हैं, ये भावना उनमें रहती है। बगैर कोई शेड्यूल के भी अगर 10 दिन उनको छोड़ दीजिए तो समय बर्बाद नहीं करते। ये खासियत है बच्चों की। हेलो आनंद सर। हम लोग सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, हर साल मई या जून महीने में लेते हैं। जो बच्चों का रिजल्ट आता है उसके आधार पर 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि उसमें से कौन सच में अंडर प्रिविलेज है। जो अंडर प्रिविलेज है उसको मौका देते हैं हम लोग। हेलो आनंद सर, माय नेम इज़ अमृता। मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ एंड आप समझते होंगे कि मैथ्स पढ़ने के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे होता है क्या कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आता है, हम आगे चलते हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द चैलेंज मुझे आज लगता है कि सहनशीलता पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी बहुत कम है कि ये कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड बिना प्रैक्टिस के आगे दे फील कि हम बढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर इफ यू कैन शेयर समथिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा। हम जितना सवाल समझ पाए, पहले हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं। सवाल यही समझे कि मान लीजिए आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, बाइनोमियल थ्योरम समझा रही है, तो बच्चा उतना उस पर अवेयरनेस उसमें नहीं, इसलिए जो जानता है ये तो हम पढ़ लिया है, पहले से जानते हैं, वही बात है। यही तो पूछना चाह रही हैं आप? हाँ। तो ये आपकी या हमारी कोई टीचर की कमजोरी है? बच्चा को कैसे बांधे रखा जाए, ये टीचर की कलाकारी। आजकल बच्चा टीचर से बहुत आगे रहता है। आप जो पढ़ाएगा उसको गूगल कर लेगा, चैट जीटीपी करके आता है और आगे निकल गया है, और आपको हमेशा जांचने के मूड में रहता है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चों का,
एंड वो चाह रहे कि मैं बाइनोमियल्स करूँ या मैं कैलकुलस करूँ, तो उन्हें बताना पड़ता है राइट कि नहीं तो पहले वो कभी आप जी, लोग जी। जैसा टीचर मजाक ही कर रहे हैं, इसको बुरा मत रहे। या श्योर ऐसा ऑफ ही कोर्स। टीचर करके बोलता है बच्चा को कि बाइनोमियल बताओ, बच्चा खड़ा हो गया, नहीं बताया, हाँ चुप बैठो, ये 8वीं क्लास का है, क्लास 8 का भी तुमको नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बैठो। अब बच्चा का आपके प्रति सम्मान ही खत्म हो जाएगा। कभी बच्चों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, नहीं जानता है वो आप ही की कमजोरी, आपके यानी टीचर कम्युनिटी की कमजोरी है, उसको हम लोग प्यार से बैठ के बताए समझाए ना। देखिए हर स्कूल में बच्चों से ही पूछना चाहते हैं, हम आप भी सब लोग भी बच्चे थे, हर स्कूल चाहे बहुत बड़ा हो, घटिया हो, अच्छा हो, एक दो टीचर जरूर रहते जिनका बहुत रिस्पेक्ट रहता है या नहीं, उसका बच्चा कभी मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए क्योंकि वो टीचर दिल से पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों के साथ गुड बिहेवियर रखते हैं। ये दो क्वालिटीज बहुत अच्छा है कि आप मेहनत करिए, हार्ड लेबर करिए और उसमें नई चीज क्या आप दे सकते हैं। और नई चीज कैसी आती है, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं सब लोगों को, नई चीज कभी पढ़ के नहीं आती, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आती है। तो आप अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताएंगे ना, जो रियल में घटना घटी है, तो चैट जीटीपी या गूगल में भी वो नहीं मिलेगा। उससे जोड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो बहुत बच्चा इंजॉय करेगा। और जहाँ बच्चा जिस दिन आपके बच्चा है ना, बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि वो एक टीचर्स का, एक इंसान का भी लिमिटेशन है। एक बच्चा सोचता है टीचर यानी बहुत बड़ी चीज, और वो पढ़ा रहा है जो गूगल में मिल रहा है वो भी नहीं जान रहा है, तो आपका वैल्यू घटा देगा। बच्चा 3 तरह का होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसलिए हम भी जवाब दे रहे हैं टीचर होके। बच्चा कोई भी इंसान किसी से 3 तरह का सवाल पूछता है। एक तो जैसे आप ही अभी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें 3 तरह का सवाल कहीं भी पूछता है, स्पेशली क्लास में तो जरूर। पहला सवाल पूछता है कि अच्छा राधा पूछ रही है, गीता पूछ रही है, रेनू पूछ रही है, तो मैं भी पूछ देती हूँ। उसका कोई मकसद ही नहीं है। रामायण की बात चल रही है, वो पूछ देगा कि अच्छा भाई सीता किसके फादर थे बताइए, भूल जाता है। तो ऐसे ही पूछना है तो पूछ देता है सवाल। दूसरा बच्चा है जो इसलिए पूछता है कि देखते हैं कि टीचर का नॉलेज कितना है, तो पूछता है तुम पूछो ना भाई, फिर दूसरा पूछता है तुम पूछो, तीसरा बोलता है लाओ ना हम ही पूछ देते, इसमें क्या दिक्कत है। टीचर का नॉलेज देखता है। और तीसरा बच्चा जो सच में प्रयास करता है, उसे सच में प्यास होती है, भूख होती है और पूछता है। तो एक टीचर को तीनों तरह के बच्चों को उनकी जिज्ञासा के, क्यूरियोसिटी को शांत करे, इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं भी पूछ रहे क्योंकि सब पूछ रहे नहीं ऐसी बात नहीं है। और मेरे हिंदी से आपको थोड़ा कान में मुश्किल होता है। तो दिस पार्ट आई डू इन इंग्लिश, कोई बात, इससे बियॉन्ड नहीं आते। But did you face any challenges from the children you are teaching or their families or parents ever? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे यही अनुपम की कहानी बता रहे थे, ऑटो ड्राइवर, इनके फादर थे, इनके फादर ऑटो चलाते थे, पार्किंग कर रहे थे, पैसा मांगी, पुलिस नहीं दी, पुलिस ने पिटाई कर दी। पुलिस पिटाई कर दी तो बहुत बीमार पड़ गए, बेड पर चले गए। अभी बोले कि मैं काम ही नहीं करूँगा, बच्चा ही काम करेगा। बच्चा जाके चलाता था, तो बहुत बार समझाते थे कि नहीं नहीं बेटा तुम चलाओ, देखो इस काम लायक भी तुम नहीं रहोगे, फेल कर जाओगे, फिर ऑटो चलाने में भी शर्म आएगी, तुम चलाओ। माँ बोलती थी नहीं बेटा तुम पढ़ो। तो ऐसा बहुत बार बच्चा भाग जाता है, पता चलता है कि इतना गरीब था बेचारा कि भाग गया। अभी एक घटना घटी थी, एक बच्चा पढ़ते पढ़ते बीच में भाग गया। फिल्म में दिखाया गया, वैसा सच में भी हुआ था, एक बच्चा भाग गया। अब वो बच्चा भाग गया, कितना भी खोजे पता नहीं चला। बाद में अभी हम फेसबुक पर पोस्ट भी डाला, ताज होटल गए वहाँ कलकत्ता में, तो वहाँ देखा कि वहाँ जनरल मैनेजर बन गया। बोला कि हम वहाँ से भाग गए थे इसलिए न सर कि हमारी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं था, तो हम कहीं कहीं काम करने लगे, बर्तन साफ करने का। ऐसे कर कर के पढ़ के फिर आपका संदेश था कि मेहनत करते रहो, आज जीएम बन गए इस होटल में। तो ऐसा चैलेंजेज आता है, उसको ये बहुत सबसे कठिन चैलेंज है, क्योंकि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इतना ना पॉवर्टी है कि उसको है ये चैलेंज, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हेलो आनंद सर, मेरा नाम वानिया अग्रवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके स्टूडेंट्स जो जिसने आपको पढ़ाए हैं, जिसने आपने पढ़ाया है, अगर वो भी सुपर 30 के ऐसे ब्रांचेज अलग अलग जगह खोल दिए तो ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए?
जो जिसे फैसिलिटी नहीं है पढ़ने की? आप फिर से सवाल सुन नहीं कोई पा रहे, मैंने कोई बात नहीं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, एक लाइन में क्या पूछ रहे हैं? हाँ, अगर वो भी सुपर अच्छा सुपर समझ गए। 30 जैसे नहीं, हमारे बच्चे जो है वो पैसा तो हम किसी से लेते नहीं, लेकिन अक्सर आते हैं मिलने हमसे। बच्चे जो रहते हैं उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको जॉब में हेल्प करते हैं, जो जिस कंपनी में रहते हैं वहाँ पर चाहते हैं कि उनको बुला ले, उनको ट्रेन करते हैं। जब भी आते हैं मिलने, फ्रूट्स लेके आते हैं बच्चों के लिए, स्वीट्स लेके आते हैं, क्लॉथ्स लेके आते हैं, तो मदद करते हैं जुड़ाव। जब फिल्म आ रही थी कई लोग उसको रुकवाना चाहते थे, हम पर कई मुकदमा कर दिया, वैसे में सब बच्चे ग्रुप बना के हमारे साथ थे। हमारे भाई पर हमला किया था, हाईवा ट्रक चढ़ा दिया था, खाना लेके जा रहा था भाई, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। 300 बच्चे, अभी 4 साल पहले की बात, 300 बच्चे जो अभी पढ़ रहे होते थे वो आके सेवा करते थे। तो बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रेम है। 2-4% बच्चा है वो भाग भी जाता है, उसका हम पता कि क्या है भाई, 30 बच्चा में 3 बच्चा, 1 बच्चा, 2 बच्चा, हर साल वो फिर कभी नहीं संपर्क करता है। अभी क्यों नहीं कांटेक्ट करता है, तो पता चला, वो बोला बाद में पता चला कि भाई हम बताते ही नहीं है कि सुपर 30 से, क्यों कि हमारे क्लास में जो लड़की है वो हमसे भाग जाएगी, इंप्रेस नहीं होगी, अरे तो गरीब घर का लड़का है। ऐसा भी 2-4-5 बच्चा अभी तक मिला है, लेकिन ऐसा एकदम रेयर है। सब बच्चा जुड़ा हुआ रहता है बहुत दिल से, अब बहुत सम्मान देता है, बहुत अच्छा लगता है। यही सुपर 30 की सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट, कमाई जो गई है। लास्ट एक क्वेश्चन और कोई पूछ सकते हैं? गुड आफ्टरनून सर। तो आजकल बहुत ऐसा हो रहा है कि हमें कोई स्कूल में भेजा जाता है जिसमें हमारी कोचिंग नहीं होती है, और आजकल टीचर्स और अध्यापक एक ही बात बोलते हैं कि तुमने पीसीएम लिया है, तुमने एमपीसी लिया है और ये कोचिंग के बिना नहीं होगा, और इसीलिए वो पढ़ाना भी छोड़ देते हैं। और अगर वो बच्चों को समझ नहीं आता है, वो कर नहीं पाते हैं, तो उन पर वो ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं। तो आपको क्या ये सच है कि पीसीएम और एमपीसी कोचिंग के बिना हुई नहीं जा सकती है? नहीं, बहुत, हम तो बहुत बच्चों को देखा बिना कोचिंग सेंटर जाए पढ़ के आईआईटी किया, बहुत अच्छा भी किया है। शुरुआती दौर पर हम 30 बच्चों को लिए थे तो केमिस्ट्री के टीचर थे भी नहीं हमारे पास, बच्चा ही लोग अपने से पढ़ लेता था, कुछ हम हल्का फुल्का हिंट दे दिए, तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोचिंग सेंटर पर जाने से जो चीज़ आप पढ़ के, कंपटीशन टफ हो गया है, अपने से नॉलेज को लीजिएगा तो वो थोड़ा फास्ट कर देता है। तो अगर आप शुरू से बहुत पढ़ रही हैं, क्लास 6 से, 7 से, 8 से, आपको खुद पढ़ के सीखने का अभ्यास हो गया, उसका प्रैक्टिस हो गया, तब तो आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो कोचिंग का हेल्प लेने से फ़ायदा तो ज़रूर है, टाइम सेव कर देता है। अब आप 10 अलग अलग बुक से कोई चीज़ सीखिएगा, वो उसका निचोड़ जो है वो आपको जिस्ट बता देगा, तो फ़ायदा है। Thank you, Anand ji. We'll just take one last question, please. Just one last question, please. जी को हम नमस्ते आनंद कुमार जी। तो पहली बात, फ्लो की तरफ से आपका माँ जी को हम सब प्रणाम करने चाहते हैं, क्योंकि 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वुमेन के बारे में, इतना बड़े बड़े बात, वुमेन कैपेबिलिटीज़, वुमेन पोटेंशियल, वुमेन पावर, एक आदमी इतने अच्छे तरह से बात करना मैंने पहली बार सुना है, क्या कि शायद आप पहले आदमी हो। तो मेरा क्वेश्चन हटके ये आईआईटी से है। तो ये सुपर 30 का मूवी और अभी जो ने आपने ये प्रोजेक्टर में बताया गया है, इतने सारे हमले हो रहे हैं आपके ऊपर, और सो मच ऑफ माफिया इज अटैकिंग यू एंड सो मच ऑफ अपोजिशन इन बिहार। व्हाट डू यू वांट टू कन्वे एक्चुअली फ्रॉम दिस? आप क्या बताना चाहते हैं? व्हाट इज योर मेन गोल? फाइनली आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छी बात है। ये बताना बहुत कठिन है कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। आप हर आदमी सोचिएगा तो ये सच में एक बहुत कठिन सवाल है, लाइफ का उद्देश्य क्या है। क्योंकि सच बताए तो हमारा लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम करते गए, मन लगते गया, करते गए, अच्छा होते चला गया, बस यही रहा। लेकिन फाइनल गोल यही है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये आखिरी सवाल है, इसलिए उसके बाद जो इसका कोई सवाल होगा यहाँ के पूछ लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। लेकिन अच्छा सवाल पूछा। पहले है कि भाई लेडीज़ के बारे में, महिलाओं के बारे में जो बात बोली तो हमने दिल से बोला, और लाख महिलाओं का आज हम सम्मान करते, फिर भी हम में बहुत सारी कमी होगी। क्योंकि ये जमाना जो बोलता है कि महिलाओं का बहुत सम्मान देते हैं, उनको समझते, वो समझ ही नहीं सकता है। जब तक आप खुद महिला नहीं बनेगा, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते। बोलना और उस
उसको फील करने में बहुत फर्क होता है। हम प्रयास भले कर सकते हैं कि आपको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम लोग नहीं दे सकते, फिर भी शायद नहीं दे पाए। इसलिए पहली बात तो ये है, और हम दिल से तमाम महिलाओं को प्रणाम कर रहे हैं एक सम्मान देने के लिए, ऐसा के लिए नहीं कि जस्ट बोलने के लिए। दूसरी बात आपने बोला कि लाइफ का फाइनल गोल यही है कि इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, जिसके पास पैसा ना भी हो लेकिन पढ़ना चाहता, उसको पढ़ा के जाए। क्योंकि एक घटना ये आपने बहुत दिल के तारों को छेड़ दिया है। आखिरी सवाल है, देना चाहते जवाब। हमारे दादाजी जो थे वो बहुत ही सिंपल एक आदमी गांव के थे, तो उनके बेटे हमारे फादर थे, ध्यान से सब सुनिएगा, बहुत पढ़ने में अच्छे थे। अपने गांव से 7 किलोमीटर डेली 8 किलोमीटर पैदल जाते थे और आते थे, और स्कूल में, उस पूरे इलाके के स्कूल में, एक गांव का नहीं, पूरे इलाके के स्कूल में उन्होंने टॉप किया था। तब बिहार झारखंड कंबाइंड था और उसका सबसे अच्छा कॉलेज था पटना साइंस कॉलेज, जिसमें एडमिशन नहीं मिलता था। तो हमारे फादर वहाँ आए पढ़ने, तो पढ़ने में हॉस्टल का किराया, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज का कितना कम होगा, वो भी हमारे दादाजी के पास नहीं था। तो हमारे दादाजी एक परिवार में, कारपेंटर के परिवार में हमारे फादर को ले जाके छोड़ दिए कि देखिए भाई, बच्चा आपके बच्चों को पढ़ा देगा, ट्यूशन छोटा छोटा बच्चा था, आप इसका देख रेख करिएगा, हम तो आ भी नहीं पाएंगे गाँव से। पिताजी वहीं रहते थे। रात में जब ठंड के मौसम में जाड़ा था तो कंबल नहीं था, तो बच्चे के बगल में सोते थे, तो उसी में किसी तरह से घुस के रात काटते थे, बताते थे। पिताजी हमारे जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है उस तरह से थोड़ा चेहरा वैसा नहीं था, थोड़ा वो देखने में हैंडसम लगते थे। सही बात पता, इस बात का थोड़ा सा माँ को शिकायत भी है तो हैंडसम लगते थे। तो जब जाते थे कॉलेज में पढ़ने, तो वहाँ पर लोग बोलता, एक लेडीज टीचर थी, प्रोफेसर थी, डांटती थी कि क्या राजेंद्र, तुम इतने ठंड में भी नहीं पहनते हो कोट या स्वेटर, हीरो बनते हो, क्योंकि पिताजी के पास स्वेटर नहीं था। अब पिताजी की पढ़ाई छूट गई और वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने के लिए लाचार मजबूर हो गए घर की परिस्थिति देख के। तो हमारे दादाजी बड़ा परेशान रहते थे कि ना बेटा का पढ़ाई छूट गया, हम पढ़ा नहीं पाए। तो फिर पिताजी के भी जीवन में ऐसी घटना घटी कि कैम्ब्रिज जाना, तो पैसा नहीं जुगाड़ कर पाए, बहुत मेहनत की, नहीं जुगाड़ कर पाए, जैसा फिल्म में आपने देखा। तो पिताजी के मन में भी ये अफसोस था कि हम अपने बेटा को नहीं भेज पाए। हमारा उद्देश्य पता नहीं कितना सफल हो पाते कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के पिता माता को इस चिंता से मुक्त कर दें कि पैसा नहीं है तो बेटा की पढ़ाई आगे कैसे बढ़ेगी। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Anand ji. As we come to an end of this wonderful afternoon, I now invite all the children present here today to join our floor chairperson, Ms. Ritu Shah, and our guest speaker, Mr. Anand Kumar, for a photograph. Anand ji, thank you so much for that inspiring talk. अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा हो या रंक हो, जग उसके संग हो. These lyrics from the movie Super 30, based on our speaker's exemplary and extraordinary life, sum up all that we witnessed today. Thank you, Anand ji, for demonstrating to the world the power that's in purity of intent and the potential of education as a catalyst of sustainable change. It was particularly heartening to hear your views about the role and contribution of women in bringing about societal change. Your fourfold mantra, which I'm going to reiterate for our children and for ourselves: tremendous thrust, positive thinking, hard labor, and great patience.
This is not just for students, but for each and every one of us here, whatever our age. On behalf of Flow Hyderabad, I would like to express my gratitude to premium platinum sponsors for the year, Kaveri Seeds and Shiv Narayan Jewelers, premium diamond sponsor Freedom Oil, diamond sponsor ARL Tires, gold sponsor Prayag Nutri, and travel partner Holiday Bazaar for their gracious support. Thank you, members of the press and media, for keeping Flow in the news. Much obliged to all our past chairs and my fellow Flow members for joining us here this afternoon, and to all the young kids who really lit up the atmosphere for us. Hurrah to every member of the working committee for the seamless teamwork in putting this event together. And now, high tea awaits you outside. Please join us.